TDS provision, which are just applicable from 1st July 2022. And on this subject, our very honorable CA Dr. Girish Ahuja ji with us. I welcome you, sir. I also welcome Rajiv Kohli ji, Anand Dua ji, Ashwani Jindal ji from Punjab, Avinash Gupta ji, our former chairman from Northern India Regional Council, Mudit Jain ji, and of course the president of Celtex Bar Association, Advocate Sanjay Sharma ji. First of all, I congratulate the Advocate Sanjay Sharma ji for the record winning on the post of president of Celtex Bar Association. That is a very old association in Delhi. I welcome you, sir, and request kindly address and introduce our Guruji. Over to Sanjay Sharma ji. Hare Krishna to all. Thank you, Rajesh जी. देखिए, परसों गुरु पूर्णिमा है और आज हमारे को ये मौका दिया गया कि हम गुरु जी के दर्शन करें और उनको सुने on a topic which is very recent and hot topic, and everybody is anxious to hear it because his version is going to be the gospel truth. बाकी सब जो है, बाकी सब भी बोलते हैं इसके ऊपर, लेकिन उनका जो कहना है वो from the horse's mouth it has to be. डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को इंट्रोड्यूस करने हैं तो इट्स लाइक अ showing light to the sun. देखिए, he is a law graduate, graduate from Shri Ram College of Commerce, and then he qualified. He got his PhD also from University of Delhi, and then he started his teaching there as a professor in Shri Ram College, the most prestigious college. He had been there as a faculty for more than 45 years, I believe. And besides that, he is the author of 10 major publications, if I am correct. So, because उनकी publication तो आती रहती हैं और वो update होती रहती हैं. 10 major publications के वो रहे हैं, author हैं, and he holds directorship in many other reputed companies, Rishi Soya, etc. डॉक्टर आहूजा जी के बारे में तो यही कह सकते हैं that he is the undisputed guru, tax guru of the country. He is like a walking encyclopedia on income tax. Anybody if ask any question, he is there to answer, whether वो topic पे हो चाहे ना हो. He doesn't have to hold any book and tell us the answers. He is verbatim. So friends, it is our good luck नेटवर्क इशू है उनका. हाँ, नेटवर्किंग का थोड़ा गुरुजी आपके पीछे ब्लेसिंग है और तो आपको मेरा शत प्रणाम. Thank you Sharma ji, and once again we all congratulate you, sir, for your winning as a president of Celtex Bar Association. And with this, I once again welcome our very honorable respected Dr. Girish Ahuja ji. I request Avinash Gupta ji, you would like to speak something? No, sir, thank you for this. I think we all here to listen Guruji on very important topic started from 1st July itself, full of controversy, और बहुत सारी चीजों पे मेरे और सर के विचार भी नहीं मिलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कई चीजों पे जो है वो है, और मैं सर से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीजें जो हमारे बीच में है जैसे रीइंबर्समेंट वगैरह उसके ऊपर सर CBDT में ठीक करवा दें, वो चीजें वहां पे ठीक करा दें. यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है इस टॉपिक पे जो आप अभी सर बताएंगे आगे. मेरे साथ चलिए, मैंने कहा था आपको, आप चल ही रहे. सर रिटर्न का सीजन है सर, इसके बाद चलते हैं. Okay, Chairman Sahab, thank you very much for your kind words, and without taking too much time, I request our Dr. Honorable Girish Ahuja ji, sir. Over to you, sir. Good evening to everyone. The founder of this CP Study Circle, Pusa Road CP Circle, Rajesh Agarwal ji, Karta of the CA family, of course, CA Ashwani Jindal ji, CA Ashwani Jindal ji,
Advocate Sanjay Sharma ji, the President of the Sale Tax Bar Association. CA Rajiv Kohli ji, Mudit Kumar Jain ji, Sunil Gamija ji, and above all, of course, the past chairman of the Northern India Regional Council, Avinash Gupta ji, Anand Dua, Anand Dua ji also co-host for today. Ladies and gentlemen, देखिए सर, बात ये है, what I'm going to talk to you is the law. मेरे से ये मत कहिए कि ये how can this happen? ये तो beyond the limit चले गए. They have what is given in the law. They have crossed that limit also, and whatever guidelines they have given that were not there in the law. ये चीजें जो हैं, ये रिट जिसने फाइल करनी है करे. मैं तो लॉ बताऊंगा और आपको बताऊंगा पर्पस क्या था. But there are certain. I'm going to be there are going to be lot of dispute. There are going to be lot of dispute because of this guidelines which है. ये मैं पहले बता दूं, गाइडलाइन जो आई है बहुत डिस्प्यूट है. एक और चीज मैं बताना चाहता हूं. Try to understand that point, very important. हमें तक अभी तक ये पता, we knew it that circular is not binding on the SSC. It is binding on the department. Where our notifications are binding both on the department as well as the SSC. This had been the practice, but over 1 or 2 years, now they have come out a different concept. They have come out certain guidelines which can be issued with the prior approval of the central government to be issued by the CBDT, and those guidelines have to be placed before the House of the Parliament. और उसमें क्या लिखा है, उस सेक्शन को पढ़िए. The guidelines are both in 94S also, 94 all also. और लिखा guidelines are binding both on the department as well as the SSC. यहाँ आकर दिख रहा है. नाम तो सर्कुलर है, लेकिन वो बाइंडिंग है because that is being placed with the parliament. लेकिन वो भी मुझे मालूम है कि guidelines cannot override the law. Whatever is law, you have to give guidelines for those laws. इसके सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है. You cannot, guidelines cannot override it. You cannot go beyond what is given in the law. पर ये थोड़ा बहुत अपना एक प्रोटेक्शन लेकर लॉ से जरा लगता है कि आगे भटक गए हैं. क्यों भटके वो भी मैं बताता हूँ. देखिए, जब ये सेक्शन आया तो मेमोरेंडम था. उस मेमोरेंडम में लिखा था देयर इज सेक्शन 20 क्लॉज IB. 20 IB सेक्शन है जिसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट whether convertible into money or not received during the course of carrying on a business or exercising any profession shall be taxable under the head profit or gain from business and profession. ये सेक्शन 28 IB में लिखा हुआ है. वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट, इसका मतलब टैक्स तो पहले से ही है, कोई नई चीज नहीं है. टैक्स तो पहले से था. अगर कोई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक सीए किसी का काम कर रहा है और काम करके उसका केस जिता देता है और कोई उसको कोई प्रेजेंट कर देता है, एक घड़ी प्रेजेंट कर देता है, या उसको कोई एयर कंडीशनर फ्री दे देता है या लैपटॉप फ्री दे देता है, डॉक्टरों को दिया ही जाता है, तो वो परक्विजिट माना जाता है. ये तो लॉ है. और फॉर्म 3 CD में भी देखिए, जब ऑडिट करते हैं तो वहां लिखते हैं कि बताइए कोई ऐसा वैल्यू ऑफ परक्विजिट है जो वे, लेकिन 90% हमें पता नहीं लगता. 90% आपका जो क्लाइंट है या जो आपका बिजनेसमैन है, he doesn't tell you that he has gone to Singapore for a dealer conference थी या क्या थी, or he has got a gold coin, or he has got a TV free, he has got such and such thing free, or laptop free or something free. वो बताते नहीं थे. और क्योंकि we never used to come to know, हम उसको 3 CD में देते भी नहीं थे और वो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं देते. और डॉक्टर्स के केस में तो आपने सुना ही है, ये मरवाया तो डॉक्टर्स ने ही शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा आपको पता है बेनिफिट दिए जाते थे. लैपटॉप फ्री दे दिया, उनको फॉरेन विजिट करा दी, उनको कई बेनिफिट दिए जाते थे. फॉर दिस रीजन कि यू शुड प्रिस्क्राइब आवर मेडिसिन. जो नई मेडिसिन आती थी डॉक्टरों कहते थे प्रिस्क्राइब करो, डॉक्टरों को कई तरह के बेनिफिट दिए जाते थे. टू कट दैट प्रैक्टिस, तो आपको पता ही है सेक्शन 37 आ गया था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी कह दिया था कि ये बेनिफिट नहीं है, ये अगेंस्ट दी एथिक्स है, यू विल नॉट बी अलाउड. और हमने 37 सेक्शन में हमने इसको एक्सप्लेनेशन में
इसको डिसअलाउ कर दिया था, दिस इज इलीगल, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस एक्सपेंडिचर। शुरू कहानी तो वहां से हुई थी कि डॉक्टर्स को बहुत बेनिफिट दिए जाते थे फॉर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, और मेडिसिन में इतने मार्जिन लिए जाते थे, सबको पता है। अभी भी आप जाइए, कैंसर की मेडिसिन में अभी भी 60% 70% डिस्काउंट मिलता है, जबकि हॉस्पिटल में वही मेडिसिन पूरे रेट में मिलती है। सो पर्पस ये था कि भाई हमारी मेडिसिन को आप वो करेंगे तो हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, और बेनिफिट वाइफ को भी उसके घुमाने ले गए, फैमिली को ले गए घुमाने, और सो मेनी थिंग्स। वो तो खैर हमें तो एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया, लेकिन पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये आया, if I am showing that particular amount as an expenditure of my expenditure and I am providing this benefit to a person, so मेरा का खर्चा है, उसको अपनी इनकम भी दिखानी चाहिए, उसको अपनी इनकम भी दिखानी चाहिए। प्रोसेस तो यहाँ से शुरू हुआ था कि भैया if somebody's expense it should be income of the other person, यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, but they have gone beyond that. In the case of a memorandum, they said there is a 28(4) where it is written value of benefit or purpose is whether converted into money or not shall be taxable under the business and profession and it should be taxable. ये तो कहा कि अब इन्होंने कहा देखो इनके भाई एक हथियार मिल गया and that is monitoring, TDS, हर चीज पे TDS काट लो, क्योंकि जब TDS कटेगा 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपकी सारी डिटेल आई जाएगी, और जब डिटेल आएगा और TDS कटा होगा तो ऑब्वियसली उस आदमी को इनकम दिखानी पड़ेगी। अब वो इनकम है नहीं है, वो तो बाद में वो बियॉन्ड चले गए, बट पर्पस वाज that 28(4) was treated as mainly an expenditure of the person providing that benefit or purpose, but it was not being shown by the person who is receiving this benefit as income. यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। सुनील जी, अब इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए चार्जिंग सेक्शन तो डालना ही नहीं है, क्योंकि 28(4) तो ऑलरेडी टैक्स कर रहा है। वो तो यह नहीं है कि इसको भी टैक्स करो, जैसे 194(s) में तो टैक्स करना पड़ा स्पेशल रेट से, बट हियर तो इट इज ऑलरेडी टैक्सेबल, बट पीपल वर नॉट शोइंग दैट इनकम। तो ये इन्होंने फिर क्या किया कि TDS का कॉन्सेप्ट ले आए बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 194(r) which is effective from 1st of July 2022. अब कईयों को लगा ये 1 अप्रैल से है, मेरे को भी पहले लगा था, क्योंकि इन्होंने डेट नहीं डाली थी, बाद में एडेंडा डालकर कॉरिजेंडम डालकर इन्होंने एक साथ डिवाइस कर दिया। लेकिन मेरे को भी शुरू में बिगिनिंग में ये लगा, जब हमने शुरू में अब रेडी निकाला तो वहां पर हमने 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल कर दिया, बाद में लगा इस अमेंडमेंट कर दी थी July 2022, पॉइंट तो ये था। अब क्या किया इन्होंने कहा, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, देखिए पर्सन को ये नहीं कहा कि बिजनेसमैन है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और वर्कुजिट, एनी बेनिफिट और परकुजिट, whether convertible into money or not, whether convertible into money or not, in the course of carrying on a business or from the arising from the business or exercise of profession, arising from the business or exercise of a profession, shall be under an obligation to deduct to ensure that the tax has been deducted at source before providing such benefit or perquisite, and the tax to be deducted at source shall be 10% of the value of the benefit or perquisite. बात को समझिए क्या करे, एवरी पर्सन, अब ये पर्सन बिजनेसमैन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्लाइंट है, वो इंडिविजुअल भी तो हो सकता है, वो बिजनेस ना भी करता हो, मेरा क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, नॉट रनिंग एनी बिजनेस, और कोई भी पर्सन है, he is giving me some benefit or perquisite, he is giving me some benefit or perquisite, whether convertible into money or not, he is giving me that benefit, but that benefit or perquisite a reason to me because of my business or because of carrying on my profession, प्रोफेशन की वजह से वो मुझे बेनिफिट मिला, बिजनेस की वजह से मिला किससे संजय जी, वो जरूरी नहीं है, मिला किससे जरूरी नहीं है, एवरी पर्सन, मिला किसको है, मुझे मिला, आई एम कैरिंग ऑन ए बिजनेस
or profession. Whose duty? Duty is the person who is providing that benefit or perquisite. Before providing that benefit or perquisite, he has to ensure that tax has been deducted at source and deposited at the rate of. कोहली साहब रात को सो नहीं सके, उनको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है. कोहली साहब व्हाट्सएप वो जो है ना वीडियो को जरा वो कर लो आप. मुझे भी नींद आ जाएगी. Visualizing scenarios where the pharma companies are giving and whitewashing the houses and doing all the things. So those are the scenarios which you are trying to hit. Sir, now it is being hit to everybody, even chartered accountants. Sir, yeah, sir, we are very small fishes, sir. Those are the sharks. Profession. Even a person who is carrying on a vocation, ये संत महात्मा जो वोकेशन करते हैं, वो जो चार्जेस लेते हैं, उनको भी कोई बेनिफिट दिया जाएगा, वो भी कवर्ड है. I never said that person providing should be doing business. I am saying the person providing can be any person, individual, HUA, firm, company, AOP, BOI, or anything. Whether carrying on a business or not is nothing to do. But the person who is the recipient, in his case, it must have a reason due to the business or exercise of his profession. मेरी बात को पहले ये समझ में आ गया. And you have to ensure that before providing that services, that tax has been deducted at source, and kitna? At the rate of 10% of the gross amount. 10% टैक्स का डिडक्ट करना, इंश्योर करना, ये कर दिया. देखिए क्या था कि वहां पर लिखा था वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट सेक्शन 28(4), या वैल्यू वर्ड हटा दिया बस, बाकी वही लिखा है बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. टैक्स 10% कटना है. अब एक प्रोवाइजो डालकर इन्होंने थोड़ा सा स्कोप को बढ़ा दिया. प्रोवाइडेड दैट if the benefit is provided in kind or provided partly in cash and partly in kind, and the amount of cash is not sufficient for the tax to be to see to it the tax is deducted, not sufficient to meet the liability of TDS. The amount of cash is not sufficient to meet the liability of TDS. In that case, the person providing that benefit should ensure that tax has been deducted. यहां आकर इस प्रोवाइजो ने सारा स्कोप ही बदल दिया. हालांकि वो भी बहुत क्लैरिटी भी नहीं कहता प्रोवाइडेड इन काइंड. ये तो मैं समझ में आ गया राजेश जी, ये तो लॉ भी है प्रोवाइडेड इन काइंड, लेकिन प्रोवाइडेड इन कैश वाला लॉ नहीं है. क्योंकि मुझे याद है एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक जजमेंट इन्होंने कोर्ट करी है अपने पर, वो तो जजमेंट ओवर रूल हो चुकी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने. इन्होंने उठाकर क्वेश्चन नंबर 3 में उसको कोर्ट कर दिया. वो तो ओवर रूल हो गई. ओवर रूल करके कहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा में सुनील जी कि जो बेनिफिट जो उसका वेवर ऑफ लोन था, वो कहता जब वेवर ऑफ लोन है वो तो मनी में नहीं, मनी में है, काइंड में नहीं है. और जो चीज काइंड में नहीं है हम उसको यहाँ पर 28(4) में नहीं लेंगे और ये कर नहीं होगा. ये उन्होंने कहा था वेवर ऑफ लोन. अब इन्होंने क्या कहा, कहता जी नहीं हमने ये कब कहा है कि ओनली काइंड वाला होगा. हमने तो ये भी वर्ड यूज किया पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, एंड पार्ट ऑफ द कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ टीडीएस, वो कह दिया. और फिर नीचे क्या लिखता है सर्कुलर आपके गाइडलाइंस में, इवन इट इज 100% इन कैश, वो भी माना जाएगा बेनिफिट और परक्विजिट. यहां पर स्कोप बढ़ा के उन्होंने उसको चूज कर लिया. वो प्रोवाइजो में जो पार्टली बेनिफिट और पार्टली कैश लिखा था उसी का बेनिफिट लेकर उन्होंने इसको भी यूज कर लिया. ये क्लियर हुआ सर कि इन्होंने उसको उसी वजह से बेनिफिट और परक्विजिट वेदर गिवन इन काइंड और पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश, इवन नाउ 100% इन कैश, दैट आल्सो हैज बीन ट्रीटेड एज द बेनिफिट परक्विजिट और. लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल दी कि भैया 20,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं है. The value provided, aggregate value or value provided aggregate during the year does not exceed 20,000. There is no need to deduct TDS. राजेश जी इसका मतलब ये नहीं है कि वो exempt है, कि वो exempt नहीं कहा है, TDS नहीं कटे. तो कोहली सर TDS ना कटे, टैक्स तो फिर भी लगना है 28(4) में या कहीं तो लगेगा. इसलिए ये मत सोच लेना
कि भैया टीडीएस नहीं करेगा, मॉनिटरिंग नहीं होगी, 20,000 से छोटे केस को छोड़ दिया, लेकिन ये सोचना कि 20,000 से नीचे वाला का जो पर्पस या बेनिफिट दिया गया वो एग्रीगेट इन ईयर उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन ये कहाँ कहा है कि वो एग्जेम्प्ट होगा? वो तो सिंपल कहा है कि उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। हमने टीडीएस की बात नहीं करी, लेकिन 20,000 से वाले का उन्होंने क्लियर कर दिया। ये भी क्लियर हो गया सर। अब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज ए पावर टू इशू विद द सीबीडीटी हैज ए पावर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के दे कैन इशू दिस circular they can issue guidelines. These guidelines will be placed before the parliament. This will be binding not only on the government not only on the department but also on the assessee. जब बाइंडिंग नेचर कर लिया तो जाके लड़ो कि ये कौन सा तरीका, ये कौन से तरीके से यह है, और बाइंडिंग भी है। तो बाइंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप गाइडलाइंस कैन गो बियॉन्ड द लॉ, गाइडलाइंस कैन गो बियॉन्ड द लॉ, ये लॉ नहीं। मैं उस इशू पे नहीं आ रहा, मैं डिस्प्यूटेड इशू में बातें नहीं कर रहा। वो तो ड्यूरिंग द कोर्ट में जाकर टाइम होगा कि ये डिस्प्यूट है और ये कैसे होगा, मुझे उसका मतलब नहीं है। मुझे लॉ पढ़ाना है, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। जिसको लिटिगेशन करना है जाकर जाए, फाइल करें, कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी करें, दैट इज ए डिफरेंट। मैं तो इस वक्त लॉ पढ़ा, कोई कह रहा है डिस्प्यूट है, बहुत डिस्प्यूट है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो इस वक्त लॉ की बात कर रहा हूँ। मैं वो केसेस नहीं कोट कर रहा कि उसमें ये लिखा है, फलाने सुप्रीम कोर्ट के केस में ये लिखा है, फलाने में ये लिखा है। पहले लॉ तो समझ में आ जाए, फिर देख लड़ेंगे ना। पहले तो आप वो क्यों अपने लिटिगेशन में पढ़ते हो सारा, इसलिए मैंने ये कह दिया। सो गाइडलाइंस इशू हुई है और आपको पता है, और गाइडलाइंस इशू रिसेंटली हुई है और उसकी क्या पोजीशन। आइए अब आगे बढ़े। ये तो टीडीएस के प्रोविजन थे। अब गाइडलाइंस में उसने क्या कहा, 10 गाइडलाइंस के क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चंस इन द गाइडलाइंस। वो क्या कहता है, इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट which you are providing, you should see to it that it is taxable in the hands of the recipient or not. क्या ये नेसेसरी है देखना कि वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिसिपिएंट के हाथ में है कि नहीं? वो कहता बिल्कुल नहीं। हमने कहा है कि ये कुछ हमने तो कहा अगर आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अवर ड्यूटी टू फाइंड आउट वेदर दैट अमाउंट व्हिच इज बेनिफिट और परक्विजिट बीइंग गिवन टू द रिसिपिएंट इज टैक्सेबल इन हिज हैंड और नॉट। वी आर नॉट कंसर्न्ड। एग्जाम्पल दे दिया, हो सकता है वो 28(4) में टैक्सेबल ना हो, लेकिन वो 41(1) में तो हो सकता है। 41(1) में वही वेवर ऑफ लोन कहता, वो भी तो हो सकता है। हो सकता है वो 28(4) में ना हो सकता है 41(1) में ना हो, लेकिन राजीव जी वो 56 में भी तो हो सकता है, 56(2)(10) में भी हो सकता है। तो उन्होंने कह दिया इट इज नॉट अवर ड्यूटी टू फाइंड आउट। तो फिर उन्होंने क्या आर्गुमेंट किया, नहीं जी ऐसे नहीं। उन्होंने कहा रुको, सेक्शन 195 में जो आप पहला ये पॉइंट है, ये रेजिडेंट के लिए है, सेक्शन 194(r). ये भी ध्यान रखना, बेनिफिट और पर्पस प्रोवाइडेड टू ए रेजिडेंट। अब कई कोहली साहब ये कहते हैं रेजिडेंट को लगाया तो नॉन रेजिडेंट को लगेगा ही नहीं, ये भी मुखालते में मत रहना। नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन 195 है, वो तो ऑलरेडी परमानेंट है। उसमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट देखना है, दैट इनकम इज चार्जेबल इन हिज हैंड, और इफ इट इज चार्जेबल इन हिज हैंड 195 तो लगेगा, उसमें तो लिमिट भी कोई नहीं। So 195 ये कोई सोच रहे हैं, सब बार बार यही बोल रहे हैं रेजिडेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट। ये गलत कहते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट अंडर 194(r). इट मे बी एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट अंडर 195। क्लियर है सर ये पॉइंट भी? इट मे बी एप्लीकेबल फॉर 95 ऑल्सो, ये सोच के चलना। अब उसने ये कहा कि 195 में लिखा हुआ है इनकम विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। वहां पर हमें देखना है कि वेदर इट इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स और नॉट। अगर वो चार्जेबल टू नहीं है तो हमें टीडीएस नहीं काटना। लेकिन यहां पर ये नहीं लिखा है दैट इनकम शुड बी चार्जेबल, वो लिखा यू हैव टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और कंसीडरेशन। ये कहां लिखा है कि बेनिफिट और कंसीडरेशन टैक्सेबल होना चाहिए? कहता हमने तो ऐसा लिखा ही नहीं, और बात भी तो सही है। वैसे तो हमें ये इस चीज में मैं एग्री करता हूं कि उनका पर्पस ये अब नहीं था, बेसिकली तो यही था कि 28(4) में पकड़ा जाए, लेकिन वो एक बियॉन्ड द लिमिट चले गए तो फिर उन्होंने वर्ड लिखा नहीं है 28(4) में, सिर्फ मेमोरेंडम में है, लॉ में तो नहीं लिखा ना टैक्सेबल अंडर 28(4). लॉ में तो नहीं लिखा ना, सेक्शन में तो नहीं आया। मेमोरेंडम में तो बहुत चीजें आती हैं, सेक्शन में 28(4) का कहीं जिक्र नहीं है कोहली साहब।
जब 28(4) का जिक्र नहीं है तो इनकम टैक्स के प्रोविजन में जहां भी आता हो टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल टीडीएस तो कटेगा। 195 में नहीं है और 194E में भी यही लिखा है कि भैया वो टैक्स, हमने वो नहीं देखना कि टैक्सेबल है कि नहीं है, टीडीएस तो कटेगा पूरे पे। वो 194E स्पोर्ट्स पर्सन का होता है, म्यूजिशियन वगैरह का होता है, वो कहते हैं ट्रीटी वीटी कुछ नहीं देखनी, टैक्स इम्पोर्ट वो तो कटेगा। क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी बैठा हुआ सुन रहा है, अविनाश गुप्ता एकदम मुझे पकड़ेगा, सर ये तो वो हुआ। उनको भी बता दूं 194E में नहीं है और 196D में भी नहीं है, उसको छोड़ दिया, इसलिए क्लियर कर दिया कि भैया वी आर नॉट कंसर्न whether that income is taxable in the hands of the recipient or not. It is your duty that tax, before providing that services, tax has to be deducted at source, and that too at the rate of 10%. ये क्वेश्चन नंबर 1 आया। राजेश जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे किसी को कोई क्वेरी है, पहले वो क्लियर करें, अब 1 by 1 क्वेश्चन में चलेंगे। और उससे पहले 194R की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाऊंगा उसके बाद। अभी तक कोई क्वेरी नहीं है सर। समझ में आएगा तो आएगी ना क्वेरी, अभी तो समझ में शुरू हुआ है आना। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सर। क्लियर हुआ? अब सेकंड इशू वही आया, इज इट नेसेसरी that the benefit or purpose shall be provided, it must be in kind for 194R? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये नेसेसरी है कि बेनिफिट और पर्पस काइंड होना चाहिए? ये वही महिंद्रा एंड महिंद्रा की जजमेंट को लेकर उन्होंने कहा है कि भैया जरूरी है कि बेनिफिट इन काइंड में हो तो ही टीडीएस काटना है 194R में। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि कहता है हमने प्रोविजो में ऑलरेडी डाल दिया है whether the benefit is given in kind or partly in cash or partly in kind, and the cash amount is not sufficient to meet the liability of TDS. In that case also you have to apply. तो उसका बेनिफिट लेकर इन्होंने क्लियर कर दिया है, कोई जरूरी नहीं है काइंड में हो, कैश में भी बेनिफिट दिया जाएगा तो भी बेनिफिट या परपोजिट दिया जाएगा, आपको ये प्रोवाइड करना है, टीडीएस क्लियर करना है। और चाहे वो उसके हाथ में टैक्सेबल है ये नहीं है, वो तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह दिया, 2 में कह दिया, काइंड में भी करना है क्योंकि हमने प्रोवाइजो में ऑलरेडी डाला। लेकिन प्रोवाइजो में महिंद्रा के बारे में जिक्र नहीं किया, और सीधा कह दिया कि भाई काइंड और कैश हो, पार्टी हो, फुल्ली हो, इट इज गोइंग टू बी टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड इफ द बेनिफिट। लेकिन राजेश जी, व्हाट इज बेनिफिट और परपोजिट ये डिफाइन नहीं किया, पूरे एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया क्या बेनिफिट और परपोजिट होगा। वो कहता आप सोचो, इज इट गोइंग टू बेनिफिट दैट रिसिपिएंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? वो भी अभी आ रहा हूं, वो बेनिफिट और परपोजिट अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है तो इस केस में टीडीएस काटना ही काटना है। वो आप जिम्मेवार नहीं है कि उसके हाथ में टैक्स लगे ना लगे, वो तो हम देखेंगे ना। जब टीडीएस उसके 26 AS में आएगा तो हम देखेंगे उसने इनकम दिखाई कि नहीं दिखाई। मेरी बात को समझ में आया? आपको टीडीएस काट के जमा कराना है और उसके 26 AS में वो आएगा ही आएगा अमाउंट ऑफ टीडीएस, और उसको उसने क्रेडिट लेना ही लेना है। 10% नहीं लेगा तो वैसे भी वो उसके 143(1) में आ जाएगा कि तेरी ये मैच नहीं कर रहा, ये इनकम क्यों नहीं आई, क्योंकि तूने टीडीएस कटा है। फिर वो एक्सप्लेनेशन देगा कि जी ये टैक्सेबल है कि नहीं है, वो तो हम देखेंगे ना। तेरे को सर उसने पेन नंबर देना ही नहीं अपना जिसने गिफ्ट लेनी है। अरे सर, डिडक्टर को टीडीएस काटना है, डिडक्टर नहीं तो एक्सपेंस क्लेम कर ही नहीं सकता। डिडक्टर को रिटर्न उसको टीडीएस देखना, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा ना। डिडक्टर वो पैन नंबर नहीं देगा तो डिडक्टर टीडीएस कैसे काटेगा? अपनी जेब से भी कराएगा तो भी ग्रॉस अप करना, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। उसको देना ही पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। डिडक्टर को डिडक्शन देने वाले नहीं है। और एक और बात है, टीडीएस नहीं काटेगा तो डिडक्टर का एक्सपेंस में 30% डिसअलाउंस भी होगा 40A IA में। अरे 40A IA भी तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। अगर टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ भी करेंगे उसको। उसने टीडीएस नहीं काटा और टीडीएस काटा, उसके 26 AS में आ गया और 26 AS में आते ही उससे पूछा जाएगा बता भाई ये क्या है। क्लियर है सर? ये क्रॉस चेकिंग है, ये दिमाग खराब कर दिया है। कहते हैं कि हमारा पर्पस रेवेन्यू कलेक्शन करना नहीं, क्या झूठ बोलते हैं। 1% हो तो मालूम, 10% काट रहे, कह रहे रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। कोहली साहब 57-8% के करीब पैसा टीडीएस से आता है। 58% पैसा टीडीएस से आ रहा है टोटल का। सर वैसे ज्यादा ही आ रहा है 60%। Sir, when PAYE was introduced in the 50s in UK, the entire concept was this कि get from TDS the income, because एक बार हाथ में पैसे को टैक्स देकर राजी नहीं होता। डबल एडवांटेज है, टीडीएस में 7 पैसे मिल गए
वन एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, मॉनिटरिंग हो गई, इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई। अब उनका वो जो आपका वो आ रहा है ना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, बेड़ा गर्क कर रही है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट निकालिए, देखिए ना आपने क्या आज का रिटर्न भरने के लिए शुरू हो गए आप जुलाई की रिटर्न वालों की कितने कितने पेजों की एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। Sir, but it has inherent deficiencies also. सर, एक डिविडेंड मिलाने के लिए 5 दिन लगे हैं मुझे। जिसके डिविडेंड आता है बाद में हमने देखना है किसी में टीडीएस कटा है, किसी में नहीं कटा है। आपको पता ही है टीडीएस कैसे कटता है, क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट है, किसी ने टीडीएस पहले नहीं काटा, बाद में काट दिया है। और डिविडेंड किसी ने इंटरिम डिविडेंड दिया, उस वक्त 2,500 से कम था, बाद में डिविडेंड दिया 2,500 से ऊपर हो गया, उससे पूरे पे काटा। अरे सर, डिविडेंड बनाने के लिए टाइम लग गया। 2 रुपए का डिविडेंड तो भी आ जानी है डिटेल, और आपका 10,000 का डिविडेंड तो भी डिटेल आ जानी है। जब बनाने लगते हैं तो एंट्री कैसे करो विदाउट टीडीएस है कि टीडीएस वाला है, वो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, साथ में 26 एस रखना पड़ता है, एनुअल इंश्योरेंस स्टेटमेंट देखनी पड़ती है, जहां जहां टीडीएस कटा हुआ है वहां पे एंट्री दूसरे तरीके से करनी पड़ती है, जहां टीडीएस नहीं कटा वहां एंट्री दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। कितना काम हो गया है। आप इजी तो हो गया कि हमें पता लग गया कि उसके बाद ये सब डिविडेंड आया है, पहले तो बताते ही नहीं थे ना। तो यू कम टू नो एवरीथिंग whether TDS deducted or not, the income is shown in the 26 years or even your annual information statement. आप देख ही रहे क्या क्या डिटेल आई है। कन्वीनियंस भी कह लो, मुश्किल भी कह लो, कंपैरिजन करते करते दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि जब आपके पास डिविडेंड आता है आप बॉदर तो करते नहीं, आ गया अकाउंट में, चलो ठीक है एंट्री करनी है, तो उसमें देखते नहीं टीडीएस कट के आया है कि क्या आया, नहीं तो उस वक्त एंट्री करवाओ। इंफॉर्मेशन तो आती है, लेकिन हम कहते कर लेंगे। जब साल भर खत्म होता है, जून का महीना खत्म हो जाता है, जुलाई में आके घबराहट शुरू हो जाती है कि यार ये तो 200 कंपनियों से डिविडेंड आया है, एक एक कंट्री का टैली करना पड़ेगा, इंटरिम भी आया है, अदरवाइज भी आया है, उसको टैली करिए, कभी गड़बड़ ना हो जाए। सर, एडवांस ऐसी लायबिलिटी भी है, एडवांस ऐसी लायबिलिटी वो तो है ही है, वो तो अलग बात है। और पहले ये तो हो जाए कि इनकम दिखा दी कि नहीं दिखा दी पूरी। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तो बाद में है, जब टीडीएस कटा था पूरी लायबिलिटी उसको दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अब उन्होंने क्लियर कर दिया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस बेनिफिट और पर्पस शुड बी इन काइंड, क्लियर कर दिया। अब कुछ जजमेंटें आई थी, कुछ कैपिटल एसेट दो तो उस केस में कि वो इनकम नहीं मानी जाती, कैपिटल रिसीट है, वो कहता रुक जा, कोई भी कैपिटल एसेट दोगे या कैपिटल रिसीट हो, हमें नहीं लेना देना, आपको तो टीडीएस काटना ही काटना है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है वो कैपिटल रिसीट 56(2)(10) में आ गई हो, वहां भी तो आ सकती है। अगर यहां ना आई है तो वहां आ गई हो। आपने को कैपिटल रिसीट हो या कैपिटल एसेट दी गई हो, जो बेनिफिट और परक्विजिट है, जैसे आपने उसको कार दे दी, सोने का सिक्का दे दिया, उसको आपने टीवी फ्रिज दे दिया, रेपो दे दिया, आप उसको बाहर घुमाने चले गए, कहा सिंगापुर ले गए या उसको बैंकॉक घुमाने ले गए, लेके जाते हैं, आपको पता है वो सारे के सारे उनका टीडीएस कटेगा भाई साहब, पूरा टीडीएस उसमें कटेगा, चाहे कैपिटल एसेट। फिर उन्होंने 6 केसेस भी दिए, तो उसमें वेवर वाला मैंने बता दिया, उसके अगेंस्ट तो कब आया है। फिर उसने कहा कार फ्री में दी गई तो भी होगा, एक आपने कोई उससे डील किया था वो बाद में फोरफिट हो गया तो वो भी माना जाएगा, तो वो भी कैपिटल गेन, उसको भी लिया जाएगा। फिर उन्होंने कई तरह के दे दिए, डायरेक्टर को फर्नीचर पिक्चर वगैरह फ्री दिया, वो भी परक्विजिट माना जाएगा, डायरेक्टर भी तो है ना, तो उसका माना जाएगा। सारी उन्हें 6 एग्जाम्पल देकर क्लियर कट कर दिया कि कैपिटल एसेट हो या कैपिटल रिसीट हो, वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर एनीथिंग, इट इज यू हैव टू वैल्यू दैट एसेट एंड डिडक्ट द टीडीएस ऑन दैट। क्लियर हुआ सर? यहां तक क्लियर हुआ? और राजेश जी यहां तक कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो अगले में शुरू होगा, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। अब आया 90% टाइम में कैश डिस्काउंट दिया जाता है, रिबेट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट, या आपको दे दिया, या कोई क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसा चीजें देते हैं कस्टमर को। क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये फाइनेंशियल वाली एप्लीकेशन है या दूसरी एप्लीकेशन है, देते हैं ना। जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, आपको पता है उसमें जीएसटी की बातें मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो जीएसटी में क्रेडिट नोट जो दिया वो तो मिल जाता है, जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वो तो बाद में दिया जाता है, उसका जीएसटी का रखना पड़ता है, जो भी है। कहता है वैसे तो जो डिस्काउंट दिया गया, क्वांटिटी डिस्काउंट है या रिबेट है या कैश डिस्काउंट है, या तो बिल में दे दिया गया या बाद में दिया गया क्रेडिट नोट द्वारा, व्हाटएवर, कहता वो हमें वो बेनिफिट परक्विजिट तो है,
इट्स नॉट दैट इट इज नॉट बेनिफिट और परक्विजिट, बट हमने उसके लिए एक आपको कह दिया, अगर वो बेनिफिट और परक्विजिट है तो वो आपके रेवेन्यू से कम हो जाता है, और दूसरे की जो परचेज होगी वो हमेशा उससे उतना कम हो जाएगी परचेज, तो आपकी रेवेन्यू कम हुई तो उसका भी तो खर्च, बुकिंग जो हुई एक्सपेंस की वो कम हुई। तो चलो इस केस में हम ये रिबेट और डिस्काउंट में हम टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ जो इस नेचर का रिबेट हो, डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, क्वांटिटी डिस्काउंट हो, उसमें दिया गया उस पे टीडीएस नहीं काटना। और कोई चीज दी गई तो रुक जाना, सब पे टीडीएस कटेगा। फिर एक सवाल उन्होंने एक एग्जांपल दे दी कि जैसे उसने 10 आइटम बेची और कहा 10 आइटम के साथ 2 आइटम मैं फ्री देता हूँ, जो 10 बाई करेगा 2 फ्री देंगे, जो 100 बाई करेगा 5 फ्री देंगे, ऐसे होता है, स्कीमें होती है इनकी कि क्वांटिटी के साथ। वो कहता अगर वही आइटम दोगे जिसपे आप डील कर रहे हो वही फ्री दोगे, तो कहता फर्क नहीं पड़ता, आपने 10 के साथ 2 फ्री करी तो 10 की कीमत में समझो आपने 12 चीजें बेची, और उसने खरीदने वाले ने 12 की कीमत वही है जो 10 में खरीदी, तो इसलिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब ये है 10 के साथ 2 फ्री दे रहे हो तो आप सेल कितनी बुक कर रहे हो, 10 की, तो हम मान लेंगे 12 आइटम की सेल है, और जो परचेजर है वो 10 के बदले 12 मिली और वो कहेगा 12 का कॉस्ट वही है जो 10 की कॉस्ट थी, तो इसलिए उन्होंने कह दिया इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये। लेकिन सपोज कीजिए एक चीज के बाद हमने कोई और प्रोडक्ट उसको फ्री दे दिया, वो नहीं, सेम प्रोडक्ट हमने उसके साथ स्कीम में रखा है, 10 के बाद 2 फालतू ले लो, ये ले लो, तो तब तो ठीक है, लेकिन 10 के साथ आप किसी और चीज को दे देंगे तो उसका तो टीडीएस कटेगा, क्योंकि फिर वो बिलिंग में नहीं आता ना, वो तो ये तो बिलिंग में ही आ गया, 12 आइटम की कीमत 10 की, जो 10 रुपए की एक चीज है, 100 रुपए की, 100 रुपए की 12 आइटम हो गई, तो वो तो ठीक है, लेकिन कोई और आइटम दे दी फ्री उसके साथ कि आप ये करो तो आपको गोल्ड सिक्का के लिए फ्री दिया जाएगा, 50 आइटम लो एक गोल्ड सिक्का फ्री, 50 आइटम लो आपको ये माउंट ब्लैक का पेन फ्री, अब ये लो आपको ये चीज फ्री। वो कहता है ये चीज को बेनिफिट और परक्विजिट है, ये कॉस्ट में नहीं आ रही, वो बिलिंग की कॉस्ट में नहीं आ रही, इसके लिए तो आपको करना क्या, अगर आपने कोई सिक्का फ्री दिया, कार दी, कोई भी बेनिफिट दिया, कोई आपको उसको कटेगा, उसको आईपीएल की फ्री टिकट, मैच कोई देख देखिए मैच होता है तो आपको बॉक्सेस में कितने आदमी फ्री टिकट देते हैं कि लो आप 50 टिकटें आपकी फैमिली के लिए, 10 टिकटें 20 टिकटें देते हैं, वो अलग बात है कि टोटल 20,000 रुपया है, 20,000 के नीचे है तो फिर नहीं टीडीएस है, लेकिन अगर वो बेनिफिट जो टिकट्स फ्री दी गई 20,000 से ऊपर की हैं और उस आदमी को दी गई कस्टमर को, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन है, ऑब्वियसली उस केस में टीडीएस तो कटेगा। फ्री टिकट देना, कोई इवेंट का टिकट दे देना, कहीं जी ये कर ली, ये इवेंट है आप वहां पर फ्री जाइए, हम आपको उसका सारा दे बेनिफिट, तो वो भी इसने कवर कर दिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये कवर। अब सबसे ज्यादा मुसीबत डाली है डॉक्टरों वाली, वो कह रहा फ्री सैंपल दिए गए डॉक्टर को, और वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉई है, डॉक्टर एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉई है, और फ्री सैंपल उस डॉक्टर को दिए गए। पता क्या कहते हैं, हमें नहीं पता, आप ये जो बेनिफिट दिए गए हॉस्पिटल का टीडीएस काट लो, हॉस्पिटल का टीडीएस काटो, अल्टीमेटली किसके बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय ऑफ दैट हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल फिर आगे देगा तो 192 में काट लेगा, वो परक्विजिट 192 में हो जाएगा। अरे यार सैंपल, दवाइयों के सैंपल अगर दिए गए तो वो एम्प्लॉय, वो डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या वो अपने लिए यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी सैंपल, भाई चलो कहते हैं लैपटॉप वगैरह दिया जाए वो तो ठीक है, अब प्री सैंपल मेडिसिन के दिए गए, वो कहता है जी आपने मेडिसिन के प्री सैंपल दिए एम्प्लॉय को, डॉक्टर जो एम्प्लॉय है, कहता है उस केस में आपको टीडीएस हॉस्पिटल का काटना है, एम्प्लॉय का नहीं, हॉस्पिटल का काटना है, आप अपना टीडीएस काट लीजिए, और हॉस्पिटल जब वो बेनिफिट आगे मानेगा कि वो एम्प्लॉय को दिया गया तो वो एम्प्लॉय की 192 में परक्विजिट ले देगा। ये नई चीज कर दी, ये जो डॉक्टरों को, वो कहता है जी सपोज कीजिए हमने वो डॉक्टर जो है कंसल्टेंट है, एम्प्लॉय नहीं, कंसल्टेंट है हॉस्पिटल का, एम्प्लॉय नहीं है, कहता तो भी ऐसे करो,
कंसल्टेंट है तो ठीक है, आप 194 आर किसका काटो, किसका टीडीएस काटो, हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल इंटर्न 194 आर उस कंसल्टेंट का काटेंगे। कहता दोनों करेंगे, ये करें। या फिर एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर आप एग्रीमेंट कर लो तो डायरेक्टली उस डॉक्टर जो कंसल्टेंट है उसका टीडीएस काट लो, हॉस्पिटल का मत काटो, लेकिन आपको टीडीएस तो देखना ही पड़ेगा, चाहे फ्री सैंपल। यहां आकर मैं जरा अजीब लगता है, आप कहते हैं कोई काइन में दी गई, कोई बेनिफिट दिया गया, वो अब फ्री सैंपल डॉक्टरों को दिए गए तो डॉक्टर क्या अपने लिए यूज करता है, क्या बेनिफिट उसको मिलता है? लेकिन उन्होंने इसको भी कवर कर दिया ये फ्री सैंपल का, और कह रहे आपको ये करना पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर। ये जो चीजें आई ना डॉक्टर्स के लिए, तो पीछे उनका नजला गिर गया पूरा कि भाई उसके ऊपर आपने जो दिया उसके ऊपर तो हम इसको डब्बा देंगे, और वैसे डायरेक्टली दोगे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई बेनिफिट दोगे तो आप क्लियर है, तो वो डॉक्टर को डायरेक्टली फ्री सैंपल दोगे तो क्लियर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को लैपटॉप फ्री दे दे अगर आपका क्लाइंट, तो फ्री है, हमें तो सिर्फ फीस नहीं देते, क्लाइंट क्या देगा, वो हमें लैपटॉप क्या देगा, फीस ही नहीं देते 2-2 साल, हमें तो कोई बेनिफिट देते ही नहीं है, लेकिन बाकी बेनिफिट तो मिलते ही है ना सर। क्या बेनिफिट मिला, कोई उसको ये फलानी चीज फायदा दे दी, ये चीज फ्री दे दी, ये चीज फ्री दे दी, तो सबके सब में टीडीएस तो वो कटेगा कटेगा। पर डॉक्टरों के लिए कुछ खास ही मेहरबानी हुई है कि उन्होंने पकड़ लिया उनको कि भाई आपका तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा, चाहे कुछ कटे। बाकी तो आपको बोला कोई गोल्ड कॉइन, क्रीपी, वे वो जो भी आप देंगे उस पर तो जो भी डॉक्टर, चाहे वो प्रोफेशन वाले को मिला है चाहे वो बिजनेसमैन वाले को मिला है, वो पूरा का पूरा टीडीएस तो आपको कटना ही पड़ेगा। आप बताइए, इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। Sir, I wanted to ask a question. First of all, thank you so much for. हाँ जी बोलो। सर सर इसमें जैसे हमारा बैंक ऑडिट में हमें जैसे मिलता है जितने भी परक्विजिट्स मिलते हैं, जैसे हमें होटल स्टे और बाकी सब चीजें मिलती है ना, अभी आएगा वो रिइंबर्समेंट में आएगा, उस क्वेश्चन को हम लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर में। अभी रुक जाइए, वो रुक जाइए, हम करेंगे वो भी। एक छोटे छोटे सर 8-9 क्वेश्चन आए हैं, मैं पूछ लूं आप कहो तो। हाँ आलोक जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑन विच टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। अभी 5वां सवाल यही है, वैल्यू कैसे निकालेंगे परक्विजिट की और बेनिफिट की। प्रवीण जी यही है जी, प्रवीण जी पूछ रहे हैं आर दिवाली गिफ्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आर। तो दिवाली गिफ्ट कोई खास बात होती है, वो आपका खर्चा क्लेम करेंगे तो बेनिफिट और परक्विजिट है, वो तो है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन वो दिया जाएगा। तो दिवाली गिफ्ट हो या कोई हो, अब तो रगड़ा ये पड़ेगा, अरे वो डायरी कैलेंडर ये जो दे रहे हैं क्या ये बेनिफिट और परक्विजिट है? पहला पॉइंट तो यही है, 20,000 से कम होगा तो टीडीएस कटना ही नहीं है। दूसरी बात ये है, कई बार ऐसी चीज दे दे, क्योंकि हमारे तो इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसी डायरियां मिली हैं कि पूछो नहीं। सर 20,000 से नीचे है, पर वो 20,000 से नीचे है। वो ठीक है, अगर 10 मेरे को दे जाए तो 20,000 से नीचे तो नहीं हुई। चलिए ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, वो 20,000 से नीचे का मतलब सिर्फ टीडीएस के लिए है, इनकम तो फिर भी है। लेकिन जहां पर देखिए, अब मुझे कोई पूछता बोर्ड लगाया हुआ है कोका कोला ने, नीचे उसका डीलर का नाम है, तो वो बेनिफिट थोड़ी है, वो तो वो कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट है, उन्होंने तो अपना बोर्ड लगा के अपना नाम का डीलर का नाम है, वो इससे बेनिफिट नहीं जाएंगे। ये डायरी कैलेंडर भी छोटी छोटी चीजों में ऐसा वो करने वाले नहीं है, लेकिन उनका पर्पस तो ये है कि किसी की गाइड, जैसे ये कैश को पकड़ा, कि किसी तरीके से बेनिफिट ना दिया जाए और वो आप टैक्स से ना, बस उनका पर्पस ये है। डॉक्टरों को पकड़ा था सैंपल की वजह से पकड़ा ना, कोई लैपटॉप फ्री देता था डॉक्टर को, कोई फ्री बेटे को घुमाने ले जाता था, कोई डॉक्टरों को पता नहीं क्या क्या मिलता था, क्योंकि मार्जिन ज्यादा थे इसलिए उनको ज्यादा मिलता था। हम लोगों के माल हमें मिलता ही क्या है जो हमें ज्यादा बेनिफिट दें? वो तो अयूज जी सानी साहब यही कह रहे हैं, हमारा उसका क्या होगा जो हम तो वो खर्चा करते हैं उसका, और उसमें क्या थोड़ा बहुत आप बचा लेते थे कि चलो भाई इतना ये खर्च नहीं किया, वो हमारा रियम्बर्समेंट है, वो बैक टू बैक रियम्बर्समेंट नहीं, उसके बारे में अभी बात करूंगा। उसने कहा आपकी इनकम है जो वो डाल लो, जो बेनिफिट जो बैंक ने आपको एयर टिकट का ये पैसे, ये वो पैसे, वो अपनी इनकम मानो, उधर वो फीस लो अपनी, वो तो ये कह रहे हैं। वो तो अभी आएगा ना भाई, बातें तो वही करनी, यही चीज है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है?
वो रजित बिजी हो गए तो क्वेश्चन कहाँ देखेंगे? रजित जी क्वेश्चन और है कोई? सर क्वेश्चन अभी कोई आए नहीं, आए तो हैं लेकिन सर वो ये रिलेटेड है, मिक्स है क्वेश्चन सर। हेलो बाद में ले लेंगे। सर, क्वेश्चन रिलेटेड है, बाद में ले लेंगे सर। आप आया वैल्यूएशन कैसे है इसका, तो कह रहे क्रॉस है कि क्या है वैल्यूएशन ऑफ दिस कैसे, जो आपने परचेज किया है, सही परचेज करके वो बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपको उसकी वैल्यूएशन वो ग्रॉस अमाउंट, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपने लेकर आगे दी है, लैपटॉप खरीदा और खरीद के आगे दे दिया, ऑब्वियसली वैल्यू तो पता है। आपने कार लेकर दे दी, वैल्यू तो पता है। टीवी लेकर दे दिया, वैल्यू तो आपको पता है, यू हैव परचेज दैट। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू? वैल्यूएशन इज वेरी क्लियर, यू बॉट इट, द परचेज वैल्यू द वैल्यू ऑफ पर्पस टू बेनिफिट, और उसके ऊपर टीडीएस काट लीजिए। अब दूसरा कहता है खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करके फ्री दे दे, तो कहता है वैल्यू विच इज टू द कस्टमर, जो वैल्यू आप कस्टमर को चार्ज है वो वैल्यू मानी जाएगी। अब यहां पर अजय जी फर्क पड़ गया, कस्टमर का क्या मतलब। एक मारुति वाले के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है और कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूटर आगे है, मेरे बात को समझ रहे? तो कस्टमर का मतलब क्या, हम होलसेल प्राइस वाला देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर का देगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कार बेची एक दुकानदार को या एक इंडस्ट्री वाले को, तो वो बेनिफिट पर्पस अलग हो गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वो कह रहा है जी अगर जो मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर, अब कस्टमर आपका डायरेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटर का हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चीज आई, अगर वो आगे देता है कंज्यूमर को, वो तो जो वैल्यू उसने लगाई, जिस बेनिफिट पे परक्विजिट कटा, वो आगे उससे चार्ज करेगा। तो मेरा पॉइंट ये है, या वर्ड कस्टमर लिखा है, कस्टमर का मतलब कंज्यूमर नहीं है, उसका जो कस्टमर है। मैं हो सकता है डायरेक्टली भी बेच रहा हूं और हो सकता है कंज्यूमर को डायरेक्टली भी बेच रहा हूं और कस्टमर को भी बेच रहा हूं। पहले तो वो कंज्यूमर क्या होना चाहिए? He must have received during the course of carrying on business and profession. अगर वो कंज्यूमर बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा तो मतलब ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं। लेकिन वो कस्टमर है जो मेरे बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है, तो मेरे दो कस्टमर है, एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी मेरा कस्टमर है, एक मैं कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचता हूँ, दोनों की प्राइसेस अलग अलग है। तो उस केस में इसकी प्राइस चार्ज टू द कस्टमर, यहाँ पर परकुछ जो रहेगा चार्ज टू द कंज्यूमर, वो परकुछ होगा, और तो डिस्प्यूट ही है, और तो कोई इसके आगे पता लग नहीं सकता। ये वैल्यूएशन बता दिया, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं करता, अमाउंट ऑफ जीएसटी नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ दिस परक्विजिट और बेनिफिट। ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 5 करा दिया। ये क्लियर, आगे मैं सारे इकट्ठे ही लूंगा क्योंकि ये खत्म होने के बाद लूंगा, क्योंकि इसमें जो तो ओवरलैपिंग हो रही है सर। जी सर। हाँ। अब देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, एक एडवर्टाइजमेंट कराना है तो कहते हैं वो प्रोडक्ट दो, जैसे आपने एडवर्टाइजमेमेंट करना है तो घड़ी दे दी, किसको दे दी? प्रियंका चोपड़ा को घड़ी दे दी, वो घड़ी दिखा रही है और घड़ी दिखा के सोशल वो मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो कर रहे हैं, अगर तो वो घड़ी वापस कर दे तो बेनिफिट और पर्पस नहीं है। या कोई भी ऐसी आइटम जो दी गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर वाले क्या करते हैं? उसका एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसका जो भी करते हैं यूज करके, अगर तो वो वापस कर दे तो बेनिफिट और पर्पस नहीं है। अगर वो वापस नहीं करता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो उस केस में वो टैक्स लगेगा, वो बेनिफिट और पर्पस माना जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है। वैसे मैंने प्रियंका चोपड़ा को तो जबरदस्ती कह दिया, ये जितने भी मीडिया वाले होते हैं, फिल्में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, या आपके लिए प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, उनको हम वो प्रोडक्ट देते हैं ना, वो प्रोडक्ट देकर उनको कहते हैं इसका बनाइए, तो फिर उसकी सारी वो चीजें निकालते हैं। उसके बाद वो अगर वो प्रोडक्ट वापस कर दे, क्योंकि वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो भी तो बिजनेस कर रहा है, हम उसको दे रहे हैं, अगर तो वो वापस कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वापस नहीं करते तो वो बेनिफिट और पर्पस माना ही जाएगा, चाहे कुछ करें। क्लियर हो गया?
ये आपके सवाल हो गए 6। अब सवाल आया सानी जी का, जो मेरे से चार्टर्ड अकाउंटेंट का रीअबर्समेंट का क्या होगा। क्लियर कर दी उन्होंने कि देखिए अगर कोई रीएम्बर्समेंट है, बैक टू बैक कभी रीएम्बर्समेंट होता नहीं, अगर रीएम्बर्समेंट है वो आप अपनी इनकम मानेंगे और जो भी आप खर्चा करेंगे वो अपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट करेंगे, कोई भी हो। अब यहां पर आएगा टर्नओवर की बढ़ जाएगा, क्योंकि टर्नओवर बढ़ जाएगा, जीएसटी का भी इशू आ सकता है। और वो अगर आपको कर रहे हैं जीएसटी, आप उसका इनपुट क्रेडिट ले लेंगे तो उसके बाद आपको देंगे, तो जीएसटी तो उन्होंने कहा इंक्लूड करना ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है, अब एयर टिकट का कराया आपने, वो गए वो उसका बोर्डिंग लॉजिंग का पैसे लिए, कोई बोर्डिंग का फिर भी कोई बिल मिल जाएगा, खाने पीने का तो कई बार बिल नहीं मिलता है, तो उसका क्या करेंगे। तो कह रहे जी आपको सारी इनकम माननी है और जो वाउचर आपके पास होंगे, जो बिल आपके पास होंगे वो एक्सपेंस शो कर दीजिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब दूसरा का टिकट बुक कराई आपने और फिर रिप्लेसमेंट दिया, वो भी माना। हाँ, टिकट बुक कराई क्लाइंट ने, और सॉरी आपके क्लाइंट ने, और आपने उसका खर्चा, पेमेंट आपने करी, टिकट बुक कराई क्लाइंट ने, पेमेंट आपने करी और उसको रियम्बर्स उसने कर दिया, कहते उससे कोई फर्क नहीं, वो टीडीएस में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट अमाउंट होगा ना, उस एग्जैक्ट अमाउंट में उसने अपना खर्चा तो बुक कर लिया, उसने तो रियम्बर्समेंट कर ली, बिल किसके नाम पे है, क्लाइंट के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नहीं आएगा। बाकी कोई भी रियम्बर्समेंट होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया, इसको पहले इनकम मानिए और फिर खर्चा क्लेम कर लीजिए, वो अलाउड है, बैक टू बैक नहीं है। हालांकि जजमेंट बहुत है, रीएम्बर्समेंट इज नॉट एन इनकम और रीएम्बर्समेंट में टीडीएस नहीं होगा। यहाँ उन्होंने कह दिया रीएम्बर्समेंट में भी टीडीएस तो कलेक्ट करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिडक्ट आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन 8 में बहुत कुछ उन्होंने बता दिया कि देखिए आपने डीलर कॉन्फ्रेंस में गए और डीलर कॉन्फ्रेंस करी, उसमें आपने कॉन्फ्रेंस करी, तो क्या ये बिजनेस की कॉन्फ्रेंस मानी जाएगी, बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ये बेनिफिट और परक्विजिट जो जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी वो बेनिफिट और परक्विजिट नहीं माना जाएगा, तो ये पूछ रहे हैं कि नहीं माना। वो कहता है देखो जी आपने कॉन्फ्रेंस किस काम के लिए की, आपने बैंकॉक नहीं लेके गए, समझ में आ गया मेरा मतलब क्या है, आपने कॉन्फ्रेंस घुमाने के लिए करी या किस काम के लिए की। हाँ, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपने उसके लिए कॉन्फ्रेंस करी, आपने ये एजुकेट करने के लिए किया कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से क्यों बेटर है, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी एजुकेशन करने के लिए कॉन्फ्रेंस की। आपने कॉन्फ्रेंस की कि देखिए हम आपको ये कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं कि आपका अकाउंट्स रिकंसाइल करने हैं, चलो एक ही जगह बैठकर सबको बुला लिया, अकाउंट्स रिकंसाइल करने उन्होंने बता दिया। क्या अब ऑर्डर के लिए, क्योंकि आप ऑर्डर ऑब्टेन करने हैं, तो एक सिटी में सबको बुला लिया, उससे ऑर्डर ऑब्टेन किए, अपना प्रेजेंटेशन दिया, ऑर्डर लिए, तो ये भी कॉन्फ्रेंस मान ली जाएगी, इसके लिए किया जाए, ये सब कुछ लिख दिया। लेकिन कहते हैं रुक जाइए, ये उस पर्सन के लिए जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में उस पर्सन के साथ उसकी फैमिली आई, उसकी वाइफ आई या कोई भी आया, उसका पूरा खर्चा लगेगा। और फिर जिस दिन कॉन्फ्रेंस है सिर्फ वही वाला खर्चा तो बचना है ना, वही तो इनकम नहीं है, आप उस पर टीडीएस नहीं करना। या उसको जो घुमाने ले गए, या उसको ले गए, चलो भाई आज यहाँ घुमाने ले गए या वहां ले गए, तो वो तो सारा खर्चा तो उस पर टीडीएस तो कटना ही पड़ेगा, वो बेनिफिट और परक्विजिट माना ही जाएगा। और फिर सिलेक्टेड कस्टमर के लिए कॉन्फ्रेंस करोगे तो वो चीज भी परक्विजिट माना जाएगा। फ्यू सिलेक्टेड के लिए करा तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि बेनिफिट देने के लिए उनको करा, तो वो भी कह रहा है बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा। अगर सबके लिए करा है तो वो कॉन्फ्रेंसेस में उसी दिन का खर्चा तो अलाउड है। लेकिन आप कहें ओवर स्टे कर जाए, 2 आए हैं, चलो लंदन गए हैं या वहां गए हैं, 2 दिन और ठहर जाए, वो 2 दिन का खर्चा अगर इसने किया है तो वो भी माना जाएगा कि उस पर टीडीएस कटना है। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। ओनली डे कॉन्फ्रेंस, वो अलग बात है कि भाई सवेरे अर्ली मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस है तो ये प्रीवियस नाइट आ गया और प्रीवियस नाइट आकर वो अगर ठहरा है तो वो तो मान लिया जाएगा, और फिर पूरे दिन में जो उनको खाना पीना खिलाया है वो चला जाएगा। बाकी में वो किसको कह रहे हैं कि उसमें कोई गिफ्ट दी गई ड्यूरिंग दैट कॉन्फ्रेंस, मानी जाएगी। सिर्फ उनको रहकर खिलाया पिलाया, क्योंकि आएगा तो अटेंड करेगा, कॉन्फ्रेंस उनका करेगा, उतना तो अलाउ कर देंगे।
ये फैक्ट ऑफ द केस होगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या है। वो आपको फैक्ट्स मांगेंगे कि कहाँ कितना किया और किस चीज के लिए कॉन्फ्रेंस की, क्या पर्पस था, किन्होंने अटेंड करी, क्या नहीं था, कहीं घूमने तो नहीं ले गए किसी को, वो सब कुछ करेंगे। क्योंकि आपने बस कर रखी है कॉन्फ्रेंस रही, चलो घुमाने ले जाए, पूरा आप जाके पूरा लंदन देखिए, वो सब चीजों को उन्होंने कवर कर दिया। सर इसका मतलब हमारी सीपी कॉन्फ्रेंस तो एग्जम्प्ट हो ही गई। आप तो अपना कंट्रीब्यूट करते हो सर आपस में, आप कहां से सीपी कॉन्फ्रेंस में कोई बेनिफिट और परक्यूट दे रहे हैं? You are not providing for business or exercise of profession. ओके सर You are not providing benefit for the और वो आप अपना ही पैसा लेकर उनको खिलाते हो, कोई बाहर से नहीं आते पैसे, कोई दे नहीं रहा है। ठीक बात है, ये बात ठीक। हाँ, ये वो वाला नहीं आएगा। ठीक है सर। अब ये अगला आ गया कि भैया देखो कि पैसे जमा कराने हैं, इंश्योर करना है कि टीडीएस डिडक्ट करना है। कैसे इंश्योर करोगे? या तो उसको कहिए तू जमा करा, एडवांस टैक्स का चालान मुझे दे, और उस पर लिख के दे कि ये एडवांस टैक्स में वो अमाउंट इंक्लूडेड है जो बेनिफिट और परक्विजिट है, और उसकी डिटेल फिर आपको 26Q में भी डालनी पड़ेगी। 26Q में अब कॉलम दे दिया उन्होंने कि भाई वो अगर जो उसने डिटेल दी है, उसका एडवांस टैक्स का चालान इतना जमा कराया है, उस अंडरटेकिंग को आप लिख के दो कि इतना टीडीएस उसने इस चालान से जमा कराया। या तो ये करो, या उसे को टीडीएस, या आप उसे को मैं जमा कराता हूं तो ग्रॉसिंग अप करो, ये तो ग्रॉसिंग अप करो। अगर आप अपनी जेब से जमा कराएंगे तो जो टीडीएस, जो टैक्स आपने टीडीएस अपनी जेब से जमा कराया है, वो भी तो उसकी परक्विजिट है, बेनिफिट है, परक्विजिट है, उसको भी ग्रॉस अप करो। और ग्रॉस अप करने के बाद ही टीडीएस कटेगा टोटल अमाउंट पे। जैसे 100 रुपया का आपने दिया और उसके ऊपर टीडीएस भी आप दे रहे हैं, तो वो 100 रुपया क्या माना जाएगा? 90 माना जाएगा। तो 100 × 100/90 वो 111 रुपए खर्चा होगा और 11 रुपए टीडीएस कटेगा। मेरी बात को समझ रहे? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए का बेनिफिट दिया, मैं 10 क्यों कहूँ, 20,000 से ऊपर है तो चलिए आपने 1 लाख का बेनिफिट दिया और टीडीएस क्या मैं जमा कराऊंगा, तो 1 लाख को 90% माना जाएगा कि 10% कट के 1 लाख दिया। तो 1 लाख × 100 डिवाइड बाई 90, तो ग्रॉस अमाउंट होगा 1,11,111 रुपए और टीडीएस होगा 11,111 रुपए। मैं जगजीत सिंह जी ठीक कह रहा हूं जग सर? ये ग्रॉसिंग अप होगा और इस ग्रॉसिंग अप के बाद आपको मिलेगा, तो ये उसकी इनकम मानी जाएगी 1,11,111 रुपए और टीडीएस का उसको 11,111 रुपए हम उसको क्रेडिट दे दें। तो ये 2 तरीके हैं टू इंश्योर, ये तो करना पड़ेगा। और लास्ट तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये जुलाई से आया, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, पहली बार आया तो अप्रैल टू जून में तो टीडीएस काटना नहीं था। तो वो अगर वो अप्रैल टू जून में 20,000 से ज्यादा भी हो चुका है तो भी टीडीएस नहीं काटना। कहां से? जुलाई से कटना था उसको नहीं, लेकिन अप्रैल टू जून में 15,000 हुआ है तो जुलाई से जब 20,000 पार हो जाएगा तो आपको काटना है। और अप्रैल जून में 20,000 से पहले हो चुका है तो जुलाई में 1 रुपया भी दोगे तो टीडीएस कटेगा। ये उन्होंने क्लियर कर दिया क्वेश्चन नंबर 10 कि 20,000 तक नहीं कटना। हाँ, जून तक 20 से ज्यादा भी हो चुका है, जितना मर्जी हो चुका है, टीडीएस नहीं कटेगा। पर यह नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा, इंफॉर्मेशन नहीं आए। जून आप जुलाई में शुरू होगा, पिछला भी जोड़ लीजिए, पिछला अगर 20,000 से कम है तो 20,000 पार करते ही आपको काटना है, पिछला 20,000 से ऑलरेडी ऊपर है तो पिछला छोड़ दीजिए, पहली जुलाई से काटना शुरू कर दीजिए। तो यही तो टोटल है 10 क्वेश्चन जो मैंने दिए। अब इसके सवाल जितने लेने ले। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। अब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को भी देती हैं जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, इस तरह के अलाउंस। तो ऑलरेडी 192 में जाइए, आप देखो ना, यूनिफॉर्म अलाउंस टैक्सेबल नहीं है, प्रोवाइडेड द यूनिफॉर्म बॉर्न इन द ऑफिस आवर, प्रोवाइडेड यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर न्यू रूल। अगर न्यू रूल में नहीं है तो यूनिफॉर्म वाले माफ है, अगर न्यू रूल में चलेंगे यूनिफॉर्म भी टैक्सेबल हो गई है। जो आप ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउंसेस देते हो या बेनिफिट परक्विजिट देते हो, वो टैक्स फ्री परक्विजिट भी तो कई है। टैक्स फ्री परक्विजिट है तो वो मान लिया जाएगा, अगर टैक्स फ्री परक्विजिट नहीं है तो 192 में आप ऑलरेडी उसका टीडीएस काटते हो। 192 में कटता है ना एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए तो है ही नहीं, ये तो है फॉर द पर्पस अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और कैरिंग ऑन प्रोफेशन। एम्प्लॉय कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा है, एम्प्लॉय तो आपका एम्प्लॉय है, उसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन 17(2) परक्विजिट का है, अलाउंसेस का सेक्शन ऑलरेडी है
तो वहां अलाउंसेस परक्विजिट सब टैक्सेबल होते हैं, बेनिफिट सारे टैक्सेबल होते हैं, जो माफ है तो माफ है। ठीक है। सेकेंडली, सपोज आई बाई ए कार, मैंने कार परचेज करी और कार डीलर ने मेरे को एक्सेसरीज फ्री दे दी विच इज मोर देन 20,000। वही बात है, वो उस आइटम को उसके साथ दिया गया तो पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो गई। अगर उसके साथ एक्स्ट्रा वो आइटम है उसकी नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, आपको कार फ्री, कार के साथ एक्सेसरी फ्री दे दी, ठीक है। कार के साथ आपको गोल्ड कॉइन दे दिया, वो परक्विजिट है, क्योंकि वो तो कार की कॉस्ट कम हो जाएगी ना जो आएगी। वो जो परक्विट दिया जाएगा वो गोल्ड कॉइन वो तो माना जाएगा, जो ये दिया गया वो नहीं माना जाएगा। ये तो उन्होंने क्लियर किया ना, 10 के बदले 2 या कोई एक्स्ट्रा आइटम दे दी तो वो हो सकता है। बाकी पर वो भी तब जिसको कार मिली वो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है। अगर वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा तो कोई बेनिफिट परक्विजिट थोड़ी दिया आपने उसको, वो तो माना ही नहीं जाएगा, फिर वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है। और पूछिए, अकेले अकेले लस्सी या दूध पी रहे हैं काकोली साहब, बाकियों को पूछे नहीं रहे। चलिए आप वो म्यूट में है। हाँ जी चलिए बोलिए सर। नहीं, आप क्वेश्चन तो अभी लूंगा सर, पहले आप अपना वो सारा खत्म हो। 194 आर तो खत्म हो गया मेरे भाई, 194 एस तो अलग करना है, 194 आर इज ओवर है क्या? 10 क्वेश्चन है और बाकी वो था मैंने बता दिया। ठीक है सर। ये सर आलोक जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑन विच टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। वैल्यूएशन बता तो दी, अगर परचेज करके दिया तो उस अमाउंट पे काटना है, अगर मैन्युफैक्चर किया है तो जो वैल्यू चार्ज टू द कस्टमर है वो लेना। दो ही तो तरीके हैं, या परचेज करके दिया होगा दे दो, या खुद मैन्युफैक्चर किया तो वो दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित जी पूछ रहे हैं इफ कंपनी सेंडिंग द डीलर्स एज ग्रुप फॉर ट्रिप एंड बुकिंग बिजनेस एक्सपेंसेस, हाउ टू डिडक्ट द टीडीएस एज इट वाज ग्रुप ट्रिप नॉट एन इंडिविजुअल। क्या उसको एलोकेट करना पड़ेगा, हर आदमी का जितने आदमी गए उसके हिसाब से कैलकुलेट करके सबका टीडीएस करना है। वो तो पर्सन पर पर्सन लगाना है, 20,000 से पर पर्सन का निकालना पड़ेगा। यू ग्रुप करा तो क्या हुआ, कांट यू एलोकेट दोज एक्सपेंसेस टू द पर्सन कंसर्न, उसको कर दीजिए उसको जितना। हाँ अगर वो सिर्फ डीलर कॉन्फ्रेंस प्योर है और वन डे जो भी कॉन्फ्रेंस होती है इस पर्पज के लिए तो आप जस्टिफाई करिए, फैक्ट है जस्टिफाई करिए, दैट इज ओनली फॉर दैट, एक्सक्लूसिवली फॉर दैट। हमने उनको कोई घुमाया फिराया नहीं है, हमें उनको कोई प्राइवेट विजिट में नहीं ले गए। उस दिन शराब पिलाई वो चल जाएगी, अगले दिन शराब पिलाई तो नहीं चलेगी। वो तो उस दिन वाली बात तो अलग हो गया ना, जिस दिन कॉन्फ्रेंस है तो खाना पीना खिलाया, वो तो एक नई चीज नहीं है। आगे क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संदेश जी पूछ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द टीडीएस। डिस्प्यूट तो होने ही होने हैं इसमें। how to calculate the TDS is the value of the benefit is to be considered is 90%. अरे सर वो काइंड में हो तो, अगर ग्रॉसिंग अप करना हो तो, मैंने बोला अगर ग्रॉसिंग अप करना हो, अगर आपने टीडीएस उसमें जमा नहीं कराना, आप अपनी जेब से जमा कराना चाहते हैं तो जो भी वैल्यू आई वो 90% मानी जाएगी और उसका 100/90 करना। मैंने ये बोला अगर वो टीडीएस जमा करा रहा है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, या अगर वो आपको पैसे दे देते हैं और आप टीडीएस जमा करा देते हैं तो भी कुछ नहीं करना। लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा और आप टीडीएस अपनी जेब से जमा कराते हैं कि मैं तो दे रहा हूं, तो वो कह रहा भाई ये तो 90% हो गया, 10 तो आपने काटना था, तो ये 90% वैल्यू होगा, इसका 100/90 करके इसकी ग्रॉसअप कर लो और ग्रॉसअप करके आप टीडीएस काटो 10%। ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएन राजगरिया जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट टारगेट इंसेंटिव बेस्ड ऑन अचीविंग सेल्स टारगेट। सर टारगेट इंसेंटिव ये बेनिफिट और परक्विजिटी होते हैं, ये डिस्काउंट या रिबेट नहीं, ये डिस्काउंट रिबेट नहीं। टारगेट इंसेंटिव में आप कोई चीज देते हो ना उसको, और वो प्रोडक्ट नहीं देते जो प्रोडक्ट आपका है, कोई और प्रोडक्ट देते हो। आप बात समझ रहे हैं, या तो प्रोडक्ट दूसरा दे रहे हो तो डेफिनेटली उसमें टीडीएस कटना चाहिए। टारगेट आपने पूरा किया, बट दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ कैश डिस्काउंट, दैट इज नॉट इन द नेचर ऑफ रिबेट, दैट इज ओनली व्हेन ही अचीव द टारगेट। उस केस में उन्होंने ये कह दिया उस पर टीडीएस काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएस भार्गव साहब पूछ रहे हैं इज इट एप्लीकेबल ऑन द डिस्काउंट अलाउड बाय हॉस्पिटल ऑन द बिल्स अबव 25,000। एक बार रिबेट डिस्काउंट तो मैंने पहले ही कह दिया, जो बिल में ऑलरेडी मिल गया उसमें क्या हुआ, डिस्काउंट हॉस्पिटल किसको दे रहा है? अरे एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेसमैन का देगा तो होगा ना। अगर वो एक इंडिविजुअल है तो बिजनेस थोड़ी कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को बेनिफिट दिया है तो अलग बात है, अगर एम्प्लॉय को दिया है तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है। जी सर।
Next question, Anurag Mittal ji. If cash gift is more than rupees 20,000, then expenses shall be disallowed 48(3). Whether 194R shall be applicable. If TDS not deducted, it will again disallowed. 194R has nothing to do. Now 194 has nothing to do with 48(3). आपने वहां डिसअलाउ करी है बिकॉज यू हैव कमिटेड अ डिफॉल्ट, बट हियर दे आर गोइंग टू टैक्स। ये टीडीएस किसके लिए कट रहा है? आपके लिए थोड़ी कट रहा है। टीडीएस उस आदमी को जो बेनिफिट गया उसका तो कटना है, उसकी तो इनकम माननी चाहिए ना। इसको छोड़िए, आपको एक्सपेंस मिला नहीं मिला क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया, आपको एक्सपेंस नहीं मिला क्योंकि 10,000 से ऊपर की पेमेंट है, आपको कैश क्यों करी? दैट इज अ सेपरेट इशू। The benefit has been given to the person who is carrying on a business or exercising profession. For that you have to deduct TDS for the purpose different, कि वो इसके लिए नहीं है कि आपने एक्सपेंस क्लेम किया। हो सकता है 40A IA ना लगे, 40A IA ना लगे क्योंकि आपने एक्सपेंस क्लेम नहीं किया, लेकिन TDS तो फिर भी काटना है। नॉन डिडक्शन ऑफ TDS will attract the penalty under 197C। इनका कहने का मतलब है जब एक्सपेंस मुझे मिला ही नहीं तो मैं 40A IA ना लगे, वो बात मान ली, लेकिन 197C में नॉन डिडक्शन की पेनल्टी तो लगेगी। 100% ऑफ द अमाउंट नॉट डिडक्टेड TDS। ठीक है सर। प्रेम बंसल जी पूछ रहे हैं, सर इफ कंपनी होल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉन्फ्रेंस आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया एंड बियर ऑल एक्सपेंसेस, वेदर 194R विल बी एप्लीकेबल? मैंने बता दिया कि भाई अगर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो एक दिन की कॉन्फ्रेंस है, पर्पस क्या है, ये कॉन्फ्रेंस है फॉर द डीलर, सिलेक्टेड की नहीं है, सिलेक्टेड की कॉन्फ्रेंस नहीं है, सिलेक्टेड फ्यू की नहीं बनाई। आपने बनाया कि देखिए हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो भी आना चाहे हम आपको ले जाएंगे, वहां प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए करा। आपने सिर्फ सिलेक्टेड 10-15 के लिए करा तो क्लियर कट है, उनको बेनिफिट परपोज दे रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दे रहे। और फिर आपने जो कॉन्फ्रेंस करी, कोई रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए करी है, कोई प्रोडक्ट की कि भाई आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया, हमारा प्रोडक्ट बेटर है उनके प्रोडक्ट से क्यों है, आपने उसकी वजह से कॉन्फ्रेंस की। आपने कॉन्फ्रेंस की ऑर्डर बुक करने हैं तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस करके वहां पर सबको बुला लिया। ये चीजें तो उन्होंने एग्जाम्पल दी है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो पढ़िए ना। कुछ पढ़ना तो आप भी पड़ेगा सर, और तो मैंने अब कहना शुरू कर दिया है, अब बगैर पढ़े काम नहीं चलना है, पढ़ना तो अब पड़ेगा ही सबको, चाहे कुछ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई जगह पर जाता हूँ, वहां उन्होंने कहता है ये सब पता है हमें, हम तो डिस्कशन करेंगे लिटिगेशन वाला, हम ये क्या डिस्कशन, हमें पता है ये लॉ बन गया, लेकिन हमारे लॉ ही नहीं पता लोगों को, पहले लॉ समझाना पड़ता है हमें। जनरल जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं वो पढ़ते ही नहीं, कहते हैं पढ़ लेंगे, कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करके सुन लेंगे, वहां पर वो इंतजार करते रहते हैं, खुद तो पढ़ना ही नहीं चाहते, सर्कुलर नंबर ही नहीं देखा होगा उन्होंने कि सर्कुलर एक आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब मेहनत करनी पड़ेगी सर, बहुत मुश्किल है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आपको 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर डिस्कशन करो ना तो डिफरेंट व्यू आता है। जब पढ़ाई नहीं है तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो मान लेते हो तो ठीक है। चलिए आगे बोलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अनुराग मित्तल जी, द डेमो मोबाइल मोर देन 20,000 रुपीज provided by a mobile company to the employee or dealer or distributor, whether 194R shall be applicable? वो अपना खर्चा क्लेम करेगा, आप इनकम रहा, वो डेमो वाला तो वो अपना खर्चा क्लेम करेगा, वो तो यही होगा, वो अपना खर्चा क्लेम करेगा, इसको इनकम मानकर उसका खर्चा क्लेम कर लेगा, डेमो का जो भी मोबाइल है उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले, जो भी करे, ये तो उसका एसेट है ना, उसको मिली, और उसके वो खर्चा उसका जो है अपना डेप्रिसिएशन क्लेम करे, जो करे, और इधर इनकम आने, एसेट तो है ना, कैपिटल एसेट तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनिस खान पारा जी पूछ रहे हैं, कार लोन इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर्स इज इट हिट बाय 194R? वो तो परकुछ है ही, या कैश में दे दिया, अभी बोला ना, कैश में हो या काइंड में हो, लेना ही लेना है। डायरेक्टर, इफ डायरेक्टर इज एम्प्लॉय तो 192 में आ जाएगा, तो 194R। दोनों तरह के डायरेक्टर होते हैं ना, जो एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है उनके भी परक्विजिट बेनिफिट टैक्सेबल होते हैं सेक्शन 28 में, जो एम्प्लॉय डायरेक्टर है वो 17(2) में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कुमार गोयल जी पूछ रहे हैं, इफ एनीवन गिव्स अनदर प्रोडक्ट फ्री प्रोड्यूस्ड बाय हिम, इज दैट लायबल टू टैक्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपना प्रोडक्ट, अब वही जो प्रोडक्ट बनाता है वही फ्री दे रहा था, सैंपल हो गए ना, अपना प्रोडक्ट आप दे रहा है तो सैंपल की तरह दे, सैंपल हो रहा है तो बता ही दिया, कीबोर्ड उसको कंपनी को दे रहा है तो भी, और उसके एम्प्लॉय को दे रहा है तो भी, और उसको दे रहा है उसके, तो सबको देना है, फ्री सैंपल में भी तो कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप बत्रा जी, वो पता क्या सोचते हैं डॉक्टर, वो फ्री सैंपल जो देते हैं ना, तो अपनी जब फीस चार्ज करते हैं तो फ्री दवाई दे देते हैं, उसी में फीस में इंक्लूड कर देते हैं,
वो ये सोच रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर वो यूज कर रहा है, सैंपल आए डॉक्टर किसी को देगा, वो उसने अगर उसने 40 अगर उसने उसको दे दी कहते हैं पत्ते उसको दे दिए 40 पेशेंट को 40 वो बांटेगा कैसे? फ्री तो बांटता नहीं है वो, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चार्ज तो कर ही लेगा ना डॉक्टर। तो इसलिए कहते हमें नहीं पता आप फ्री दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, पहले इनकम मानो खर्चा क्लेम कर लो। Next question, Pradeep Batraji, whether write-off of advance given for supply of goods will fall under the definition of benefit? उस पे लिखा है वैसे भी राइट ऑफ द डिस्काउंट अगर रेवेन्यू लॉस है तो बिजनेस लॉस माना जाता है इस किताबों में, लेकिन वो कह रहा बेनिफिट तो दिया, जो बेनिफिट है उसकी इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप खुद ही सोचिए, उसकी इनकम होनी चाहिए। आपको कोई आपको खर्चा अलाउ करेंगे तो उसकी इनकम तो होनी चाहिए। तो कह रहा हमने तो अब 28(4) कहा नहीं है, हम तो आपको कह रहे हैं कि जो भी बेनिफिट और परक्विजिट दिया वो उसके ऊपर टीडीएस काटिए, बाकी रेस्ट लीव इट टू अस वेदर दैट इज टैक्सेबल इन हिज हैंड और नॉट, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। वही तो कह रहा है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में, यू डोंट हैव टू बॉदर वेदर इट इज टैक्सेबल इन हिज हैंड और नॉट, यू हैव टू टीडीएस। ये बेनिफिट दिया अभी तक पड़ी हुई है कि बैड डेट क्या माना जाएगा। Sir, in case of bad debts written off, वही तो अभी तक बोला मैंने। तो सर उसमें सर तो वो पैसे अगर बैड डेट मैंने डेबिट किया तो उसको इनकम भी तो होनी चाहिए। सर तो उसमें तो पैसे नहीं आ रहे, टीडीएस अपनी जेब से और जमा करे। वो सर टीडीएस जमा नहीं करना, टीडीएस तो उससे लेना है, नहीं तो उसको कहना दिखा शो कर जमा करा, वो तो वही तो रखना आएगा। यही तो पैसे नहीं आ रहे, ये तो आप सोच रहे हैं आ रहे नहीं आ रहे, कईयों को तो अब मैं आगे कुछ बोलूंगा नहीं तो अच्छा है, लेकिन कई चीजें जेन्युइन भी मारा जाएगा और कई इनजेन्युइन एक्टिविटी ना करें, इसलिए उन्होंने डाल दिया। अभी तो मैं जा रहा हूं, मैंने अविनाश को यही तो कहा ये बेड डेट वगैरह के इशू कम लाएंगे। अरे यार एक तो पैसे नहीं आ रहे, अरे वो आप कह रहे हैं इसके ऊपर टीडीएस काटो ये करो, वो कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो टीडीएस के पैसे कहां से दे देगा? जी सर, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी जेब से जमा कराऊंगा तो मारा गया। जी तो सर, ये चीजें तो डिस्कस करने जा रहे हैं, जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विमला जी पूछ रहे हैं, विल दिस 194 आर अप्लाई टू स्पॉन्सरशिप फॉर वेरियस कंसर्ट्स फॉर रेजिंग फंड्स और फॉर चैरिटी? देखिए स्पॉन्सरशिप में आर यू गिविंग दिस बेनिफिट टू द पर्सन फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और एक्सरसाइज द प्रोफेशन? अगर वो एक्सरसाइज द प्रोफेशन में दे रहे हैं तो आप नाम बदल के उसको स्पॉन्सरशिप कह रहे हैं, पर्पस तो वही होगा। तो ये इज ही कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन जिसको आपने स्पॉन्सरशिप दी है तो इनकम है और वो खर्चा क्लेम करे। ठीक। Next question, anonymous attendee, if a tour scheme is given as the sales target scheme but the distributor takes credit note on 31st March 2023 and does not go on tour, then TDS 194 are applicable? बात तो एक ही है यार, क्रेडिट कैश जो भी है, बात तो एक ही है। जो टूर का पैसे उससे वो क्रेडिट नोट ले लिया, ये डिस्काउंट नहीं है, ये कोई डिस्काउंट नहीं है कि जो टूर पे जाना था उसके बदले में कैश, इनडायरेक्टली कैश, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैश का बेनिफिट, उतना अमाउंट उसका लायबिलिटी कम कर दी, क्रेडिटर कम कर दिए, तो उसका जो डेटर है उसका अमाउंट कम कर दिया, तो बात तो एक ही है। अनुराग मित्तल जी पूछ रहे हैं, परचेज ऑफ मटेरियल एंड डोनेट टू हॉस्पिटल अंडर CSR स्कीम, वेदर 194 आर इज एप्लीकेबल? में डोनेट करेंगे तो क्या वो वाला जो ले रहा है वो कोई बिजनेस कर रहा है? ही इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस, दैट पर्सन इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस। जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है वो बिजनेस नहीं करता है, उस केस में क्यों आप दिक्कत कर रहे हैं? वो कोई दिक्कत नहीं है, he is not doing any business, the charitable trust is not doing any business or profession. संदेश गिरिया जी पूछ रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट ₹20,000, व्हाट इफ ए प्रोफेशनल इज रिसीविंग 60,000 बेनिफिट फ्रॉम 4 कंपनीज, should the pharma company take a declaration from the doctor asking if his benefit are crossing ₹20,000 in a year? ये तो आपको देखना है, उसको नहीं देखना। बिफोर प्रोवाइडिंग दैट बेनिफिट यू हैव टू डिडक्ट। तो अंडरटेकिंग क्या लेनी है आपको देखना है, जब 20,000 से ऊपर हो जाए टोटल टीडीएस काटिए। Next question, social media influencer, what if the product cosmetic /e-bills gets fully exhausted
while rendering service to the भाई brand. ये सवाल पता हजारों ने पूछा, वो प्रियंका चोपड़ा को सारे वो दिए गए, उसने कॉस्मेटिक लगा लिया, वो फेस पे कर लिया, वो कर लिया, वो तो यूज हो गया, तो क्या उसका पर्सनल बेनिफिट है? ये चीजें जो है ना, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, हंसने खेलने की बात नहीं। अगर उसको कोई काइंड में चाहिए, उसको गाड़ी दी गई थी, वो चीज आएगी। और ये इसके लिए कि उसने कॉस्मेटिक लगाया, कॉस्मेटिक लगाने वाला आदमी ने उसको लगाया, वो तो आपके बेनिफिट के लिए चीजें थी, वो नहीं। सर कई बार साड़ी सूट कई चीजें मिल जाती है ना सर, उनकी बात करो। नहीं, वो तो ये भी पूछ रहे कि वो तो ये भी पूछेंगे 10% कॉस्मेटिक लगा, बाकी 90% उसको फ्री दे दिया, तो क्या होगा? ये चीजें अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। Next question, sir. If I know PAN number of other person and deposit 10% TDS other under 194R, then that person has to show his income at 100%, grossing up the TDS amount irrespective of actually received any perk or gift paid by him. देखिए, whether that is going to be taxed in his hand or not, we are not going to put a question to that. That part is separate. Here we are doing 194R, we are providing benefit or perquisite, और शुरू में ही कह दिया, whether it is chargeable to income tax or not in his hand, I'm not concerned. I have to deduct TDS. My duty is over. Whether he shows as income or not, it is his outlook. वो बहस करेगा, वो लड़ेगा कि ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो अलग बात है। मेरे को तो ये देखना है। Next question, राकेश मेहंदी रत्ता जी पूछ रहे हैं, an individual bought a laptop and as per agreement with foreign employer, the amount was paid by the employer. Bill is in the name of employee who paid GST on that. Is TDS applicable on this reimbursement? मैंने आपको बोला कि नहीं, मेरे को क्वेश्चन दोबारा रिपीट सर आपके सर वो थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस इशू है। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पढ़ दो। राकेश मेहंदी रत्ता जी पूछ रहे हैं, एन इंडिविजुअल बॉट ए लैपटॉप एंड एज पर एग्रीमेंट विद फॉरेन एम्प्लॉयर द अमाउंट वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर, बिल इज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉय में लैपटॉप फ्री होता है, वो परक्विजिट नहीं माना जाता। एम्प्लॉय में लैपटॉप या कंप्यूटर जो दिया जाता है, वो वैसे ही परक्विजिट नहीं है, ऑलरेडी माफ कर रखा है अंदर उसमें, लैपटॉप कंप्यूटर में। तो वो तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, बिजनेस का रिलेशनशिप थोड़ी है, उसमें तो ऑलरेडी माफ कर रखा है। उसमें तो कंप्यूटर इवन घर पे यूज करे तो भी माफ कर रखा है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो भी माफ कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण जी पूछ रहे हैं, इफ अमाउंट ऑफ परक्विजिट इज 25,000 देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन 25,000 और 5,000? सर ऐसा है, उन्होंने जो एग्जांपल दी है, जो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, उन्होंने यही कहा है कि जब 20,000 से ऊपर हो तो 5,000 काट। तो उस तरीके से वो उसी लाइन पे चल रहे हैं, तो आपको 5,000 में कटेगा, तो वो पर मेरे हिसाब से पूछो तो पूरे 25 पे कटना चाहिए। वो तो उन्होंने एग्रीगेट करा कि भाई पिछला जो जून से पहले का है उसका क्या करना है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आफ्टर 1 जुलाई है तो यू शुड डिडक्ट ऑन द टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षत गुप्ता जी पूछ रहे हैं, रियम्बर्समेंट गिवन बाय कंपनी टू एम्प्लॉय एक्सपेंडेड बाय एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। एम्प्लॉयर को बीच में क्यों ला रहे हो? यहाँ एम्प्लॉय वाली बात सैलरी में जाके बात करें, यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो वो रिलेशनशिप वो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, वो पर्सन दे रहा है और लेने वाला बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर। ठीक सर ये कह रहे हैं, यहाँ पर राजीव गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर इफ पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल देन? ये तो लॉ है, ये राजीव गुप्ता जी को पूछिए कि हर बार तो ये जो बिजनेसमैन का पैन नंबर नहीं होगा जिससे डील कर रहे हैं, ये क्या बातें कर रही है? बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं, उनका माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जीएसटी नंबर, जीएसटी का बिल बनाया होगा तो भी पैन लिया होगा। ये बातें मत करो सर। ये चीजें जो है ना, ये अपने आप को घुमाने वाली हैं कि तरीका ढूंढो तो छोटे पतली गली से निकल जाए। ये पतली गली वाला रास्ता नहीं है सर, ये करना ही पड़ेगा। ये पैन नहीं है, ऐसा कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन हरमनजीत जी पूछ रहे हैं, रिइंबर्समेंट ऑफ टैक्स ऑब्लिक टीडीएस और एडवांस टैक्स, डज दिस आल्सो फॉल अंडर सेक्शन 194? किसका रिइंबर्समेंट ऑफ टैक्स यार, किसका? वो जिसका बिजनेसमैन का है
वो तो बिजनेस का मैंने पहले ही ले लिया उसको कि अगर जी जब ग्रॉसिंग अप करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुखदेव मदनानी जी पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, प्लीज गाइड ऑन दिस अनरिलेटेड क्वेश्चन. फॉर्म 110B was filed within due date, but due to miscommunication among CA's staff only, the audit report was accepted 5 days late. That is after the due date. The ITR2 was filed within due date. Now notice received disallowing the entire application of income. 119 में जाकर कंडोनेशन कराने की कोशिश कीजिए, बस, और कोई तरीका नहीं. You have to go for condonation, otherwise तो नहीं मिलेगा. एग्जामिशन भी नहीं मिलेगी. अगले सालों से कर दिया. अब तो लॉ चेंज हो गया ना कि अगर रिटर्न लेट भी फाइल करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा. और वो भी 4 कंडीशन डाल रखी हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर उससे ना किया हो, कॉर्पस से ना किया हो, लोन लेके ना किया हो, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, और दूसरे किसी को ट्रस्ट को डोनेशन ना दिया हो. तो अब लॉ आ गया है अगले साल से 23-24 से 22-23 प्रीवियस ईयर कि हम आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अलाउ कर दे. ये अब चेंज आया है, पहले नहीं था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद कुमार गोस्वामी जी, सर प्लीज गिव क्लैरिटी ऑन रिएम्बर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस टू कंसल्टेंट. एक ही बात है, बता तो दिया, और आप क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, उसमें 7 नंबर उसमें क्लियर कर दिया. कंसल्टेंट ने पैसे खर्चे करे, उसके ब्याह पे ट्रेवल किया, कंसल्टेंट ने रिएम्बर्समेंट मांगा, वो कंसल्टेंट की इनकम है और वो बाद में अपना खर्चा क्लेम करे कंसल्टेंट का. अगर बिल उसके नाम बनाया क्लाइंट के नाम पे, जिसने दिया बिल क्लाइंट अपने नाम लेता है, पेमेंट आप कर देते हैं और फिर आपको रिएम्बर्समेंट होता है, तो उस केस में छोड़ रखा है, बाकी किसी चीज में नहीं छोड़ा. वो क्लियर किया हुआ है, क्वेश्चन में एग्जांपल दे रखी है. तो क्वेश्चन नंबर 7 में. नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश गर्ग जी पूछ रहे हैं, व्हेन फ्री बॉक्सेस ऑफर्ड बाय द फार्मा कंपनीज टू सम डिफरेंट मेडिसिन व्हिच इज नॉट एक्चुअली बिल्ड. कोई एक ही बात हो गई यार, सैंपल किसी भी चीज के दे रहे हो ना आप, उनको सैंपल अपनी दवाइयों को ही दे रहे हो ना, अपनी आइटम के सिर ही सैंपल दे रहे हो. तो लॉ बता दिया आपको मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 में यही तो लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण जी पूछ रहे हैं, एज टैक्स ऑडिटर हाउ डिस्चार्ज हिज ड्यूटी. वो तो ड्यूटी पूरी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, फांसी तो हमें ही लगनी है. पहले भी 28(4) होता था, हमें नॉलेज नहीं होती थी, हम कह देते थे पता नहीं है. अब तो टीडीएस का प्रोविजन है, आपको देखना पड़ेगा कि टीडीएस अगर कोई बेनिफिट ऐसा दिया है तो आपको पता करना है. बाकी चीजों का टीडीएस नहीं देखते आप, इसका भी देखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी पूछ रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू गिफ्ट गिवन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल एज ए कस्टमरी ड्यूरिंग दिवाली एंड वैल्यू. वहां पर लिखा है गवर्नमेंट को अगर दिया जाए, ऑफिशियल नहीं लिखा. गवर्नमेंट अगर कोई ये बेनिफिट पर कुछ दिया जाएगा तो उसमें नहीं है, वो भी बेवकूफ वाला लिखा है. 196 में पहले लिखा है कि गवर्नमेंट का टीडीएस किसी भी चीज पे नहीं कटता. बेकार की बातें करते, वो तो बेकार की चीज है. गवर्नमेंट ऑफिशियल की बातें समझ रहे हो ना, इंटेंशन क्या है इनकी इंटेंशन समझ रहे हो ना. वो वाली बातें मत करो, वो बिजनेस से नहीं आ रही कनेक्टेड, वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन गुप्ता जी, 194R is applicable only to person on whom tax audit is applicable. Is it correct? ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है. वो तो उसमें है 194S में, वो 194S का है, यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा. आर में तो नहीं है, आर में तो इवन सर वो 1 करोड़ वाली लिमिट से नीचे वाले के ऊपर वो लिखा हुआ बस. हाँ है, मैं याद आया, मैं भूल गया. एक प्रोवाइजो और है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आपकी लिमिट अगर बिजनेस करते हैं तो 1 करोड़ से नीचे है, और अगर प्रोफेशन करते हैं तो 50 लाख से नीचे है, तो उस केस में उस आदमी को जो प्रोवाइड करेंगे, वो जो प्रोवाइड करेगा उसको टीडीएस नहीं काटना. प्रोवाइडर, नॉट के रिसिपिएंट. जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर एक छोटा दुकानदार है, 1 करोड़ से कम है, एक छोटा प्रोफेशनल है, वो देगा क्या किसी को? वो अगर बेनिफिट दे रहा है, ये प्रोवाइडर की बात हो रही है. मैं भूल गया ये कहना, ये प्रोवाइडर हो तो प्रोवाइडर, द वर्ड इज प्रोवाइडर ऑफ द बेनिफिट. वो कौन है? एक छोटा दुकानदार है और वो आगे दे रहा है, उसको छोड़ दिया है टीडीएस. वो तो कई जगह और जगह पे भी, तो रेंट में भी होता था और कई जगह पे भी है. इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर नॉट कवर्ड अंडर 44AB A और ABB आर नॉट सपोज्ड टू गेट द टीडीएस. उसी तरीके से ये भी कर, वो टीडीएस के सारे सेक्शन में लिखा हुआ सर. हाँ, कई सेक्शन में लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी पूछ रहे हैं, वेदर सेक्शन 194R is applicable to charitable trust registered under section 12A. Are they doing business? No. No.
नो, तो फिर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव गर्ग जी, इफ टारगेट इंसेंटिव इज गिवन बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट देन इज टीडीएस एप्लीकेबल ऑन सच क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट, वो टारगेट अभी क्रेडिट नोट डिस्काउंट नहीं है, उसके ऊपर कटेगा वो बेनिफिट पर। आप उसको टारगेट कहेंगे, टारगेट नहीं होता, उसको अगर कोई बेनिफिट दिया जाता है क्रेडिट नोट का मतलब कैश में बेनिफिट दिया गया उसको, इट इज अ बेनिफिट इन कैश। क्रेडिट नोट का मतलब तो कैश ही है, उसको उतना पैसे कम ले लिए, उससे जो पैसे लिए उससे कम ले लिए। ये कोई पॉलिसी में नहीं आता है कि डिस्काउंट वाली है कैश डिस्काउंट है, ये नहीं। तो उसको काट लीजिए तो बेटर रहेगा, नहीं तो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, डिस्प्यूटेड है, ग्रे एरिया में बता। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी पूछ रहे हैं, वेदर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड अंडर अदर सेक्शन देन आल्सो टीडीएस नीड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194R? सर 194R का जो दिया गया वो अदर सेक्शन में आता नहीं है। अगर वो ये लिखा 194R में आएगा तो अदर सेक्शन में नहीं कटेगा, ये लिखा है वो। अगर 194R में आएगा तो अदर सेक्शन में नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनोनिमस अटेंडी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग इन फर्स्ट प्रोवाइजो दैट कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी? सर आधा कैश दे दिया, आधा काइंड में दे दिया, होता है ना। तो कह रहा है कि जो कैश दिया उतना पैसे नहीं है कि टोटल अमाउंट पे टीडीएस काटना। सब 50,000 कैश दिया, 50,000 की आइटम दे दी, टोटल कितना हुआ 1 लाख। 1 लाख पे तो 10% तो कुछ नहीं होता, लेकिन सपोज करिए 50,000 कैश दे दिया, 5 लाख का सामान दे दिया, 5 लाख 50,000 पे टीडीएस 55,000 है, ये तो 50 है, तो 5,000 कम है ना। तो उस केस में उनका सफिशिएंट नहीं है तो टीडीएस कटवाइए, नहीं तो उससे 50 से ही काट लेगा। 5,000 कम है इसलिए उससे टीडीएस काटो और उसे इंश्योर करो कि 5,000 पे भी टैक्स लगे, ये चीज है। जितेंद्र कुमार पटेल जी पूछ रहे हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट है, कौन सा टैक्स डिपॉजिट करते हो क्लाइंट के बिहाफ में? बेनिफिट ही है, बेनिफिट परक्यूटेड इन कैश है, ऐसे कौन सा उसका टैक्स मैं क्यों दूंगा भाई? नहीं सर, कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं पर वो बिजनेस में नहीं आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अकाउंट से कैश टैक्स दे देते हैं, बाद में रिइंबर्स ले लेते हैं उसका। वो चीज और है यार, वो तो वो उसमें टैक्स जमा कराने के लिए जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल रखा होता है, वो तो आप उनके बिहाफ पे कर रहे हो। यू आर नॉट कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन, दिस इज नॉट आउट ऑफ कैरिंग ऑन ए प्रोफेशन, दिस इज यू आर एजेंसी काम है कि उसके बिहाफ पर आपने जमा कराया, वो चीज अलग है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज माथुर जी, सर मे प्लीज कंफर्म दैट दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केसेस वेयर रिसिपिएंट इज एक्सरसाइजिंग बिजनेस और प्रोफेशन? हाँ जी, यही कहा मैंने, when the recipient is arising from business or exercising of profession। मैं recipient की बात कर रहा हूँ, person providing की बात नहीं कर रहा। person providing may be a business carrying on a business or not, but person recipient should be carrying on a business or profession। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल शर्मा जी, इन रियल एस्टेट बिजनेस जनरली बिजनेसमैन इनकर एक्सपेंसेस ऑन फूड while visiting the site and booked as business promotion expenses? सारे करते हैं, वो नई चीज क्या है, वो तो क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए तो करते ही हैं। वो कोई बेनिफिट और परक्यूटेड थोड़ी ही दिया, कोई गिफ्ट थोड़ी दी है। वो अगर बेनिफिट परक्यूटेड एक मीटिंग में बैठेंगे तो चाय पानी तो पूछते ही हैं, खाना पूछते हैं, वो चीजें आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। These are to be justified that it प्रकार it was a meeting, कॉन्फ्रेंस में जरूरी थोड़ी है 100 आदमी आए थे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, उस मीटिंग में आपने उसको एंटरटेन किया है तो वो एंटरटेन तो करना ही पड़ता है, पर वो बिजनेस एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि पर्सनल एंटरटेनमेंट को किया, वो तो करते ही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्षत गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इज टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194R if a company is reimbursing expenses to its employee incurred by employee on behalf of the company? हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय की बात में 192 होता है, 194R नहीं होता। एम्प्लॉय को यहाँ पर मत लाइए। एम्प्लॉय, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को जो दे रहा हूँ वो तो हम देखेंगे क्या वो बेनिफिट उसको है कि नहीं है, वो 192 में जाएगा या नहीं जाएगा। वेदर दैट बेनिफिट इज गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, क्या दिया, वो 192 का काम है, वो 194R में नहीं आता। 194R में तो वो पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, ना कि वो एम्प्लॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगर वो देने वाला मेरे एम्प्लॉय को देगा तो हो जाता है। जो देने वाला है, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे एम्प्लॉय को दे रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गया ना, वो पकड़ा जाए, वो वाले तो आएगा, वो तो टीडीएस आएगा, मैं वो काटेगा मेरा और मैं उसका 192 लूंगा। ये तो मैंने ऊपर बताया, वो एग्जांपल में बताया था आपको 4 नंबर में।
Next question come by Kamal Bhatt ji. Compensation for order cancellation, whether TDS applicable? सर देखिए कंपनसेशन बेनिफिट तो दिया उसको, बेनिफिट दिया तो टीडीएस काटिए, बात खत्म। कैश में बेनिफिट है काटिए, क्योंकि उन्हें एग्जांपल दे रखी है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर वो पढ़ेंगे 3 तो पहला वो ही है। अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो 1 मिनट रुको, मैं जाके कहाँ है क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें पहली आइटम है, मैं पढ़ता हूँ जी, मैंने निकाल लिया। Assessee entered into an agreement with J for purchase of a plot of land and certain amount was paid as earnest money. However, possession of land was not given to the assessee and seller entered into another agreement with a third party to develop the said plot. Assessee filed suit in which a consent decree was passed in pursuance of some amount और उसको दिया गया तो कह रहा TDS कटेगा, वो कैपिटल रिसीट नहीं है, वो तो कैपिटल रिसीट के बारे में बात कर रहा नहीं है। Next question, Kanchan Kapoor ji. Should we consider tax deposited on behalf of assessee as income? Why not? कौन सा टैक्स डिपॉजिट कराता है? वो कहता रहा हूं 90% जो मैंने कहा ना अभी, वो जो चीज आपने दी वो 10% काट के दी, वो 10% जो काटना है उसको ग्रॉसअप तो करेंगे ना। वो ग्रॉसअप के लिए तो मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए का आपने लैपटॉप फ्री दे दिया, टीडीएस आपने उससे लेना है, या तो वो जमा कराए उस पर 10,000 रुपए, या 10,000 मुझे दे मैं जमा करा दूंगा। ये कहता है नहीं मैं ही जमा कराऊंगा, तो वो 1 लाख माना जाएगा आफ्टर टीडीएस। दैट मीन वो 1 लाख 90% है, ठीक है ना जी। तो 1 लाख के ऊपर मैं 100/90 करूंगा तो 1,11,111 रुपए बनेंगे। एम आई राइट? 11,111 रुपए टीडीएस जमा कराना पड़ेगा मुझे, और उसकी इनकम 1,11,111 होगी, 1 लाख नहीं होगी। बेनिफिट की वैल्यू 1,11,111 होगी। ये क्लियर नहीं हो रहा? अर्थमेटिक है यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना तो सबको पता है ग्रॉसिंग अप का क्या सिस्टम है। Next question, Rohan Gupta ji. Traveling expenses, food expenses reimbursed by client, whether this will be considered as perquisite and TDS under 194? वही वाली बात है, अगर वो कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया या वो आया आपके ऑफिस में उसको खाना खिला दिया, ये चीजें डे टू डे की इसमें नहीं मान रहे। वो चीजें तो वो तो वैसे भी 20,000 से कम होगी यार, कितनी बार खाना खिला दोगे उसको, वो तो 20,000 से कम ही होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जो बेनिफिट और परक्विजिट उसको दिया गया इन द गाइज ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट, क्योंकि बेनिफिट और परक्विजिट डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा जो चीजें पर्पज ये है कि हम उसको पास ऑन कर रहे हैं, अपना खर्चा क्लेम कर रहे हैं, और ये रेगुलरली क्या क्या चीजें देते हैं कि क्लाइंट आता है उसको कोई गिफ्ट दे दी, उसको कुछ दे दिया, तो वो सारे बेनिफिट और परक्विजिट हैं, वो आएगा। Next question, Manoj Sindhwani ji. Bearer voucher of car issued by a supplier of electronic goods to its dealer, which is to be availed after meeting particular sales target of a dealer. Give this to a परक्विजिट है, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, इस पे टीडीएस कटेगा। TDS कटेगा। Next question, Kuldeep Singh ji. Sir, what about when the gift given to person come for inspection at company side on behalf of company? दोबारा बोलिए। Sir, what about when the gift given to a person who come for inspection at company side on behalf of company? हे राम, बेकार की बातें करते हैं आप। ये वो बिजनेस करने आया है तुम्हारे पास, वो ऐसे तो कई चीजें हैं जो लॉ वाला नहीं बता सकता। वो फैक्ट ऑफ द केस है, अपने आप डिसाइड करिए, जस्टिफाई करिए ये एक्सपेंडिचर किस नेचर का है। आपके तो कई पार्टनर हैं, मैं बोलूं नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर वेदर मैच बॉक्स ओब्लिक स्पून गिवन फ्री अलोंग विद इंसेंस स्टिक लायबल फॉर टीडीएस? मेरे भाई कितने दिए? 20,000 से ऊपर का दिया क्या? और ये अब छोटी छोटी बात, 20,000 से ऊपर है तभी तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज कहां से कट जाएगा? बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, गौरव गर्ग जी. क्रेडिट नोट रिसीव्ड ऑन अचीविंग टारगेट इज क्रेडिट एंड P&L अकाउंट हो ऑफ गया, द इस डीलर. क्वेश्चन कई बार हो गया, रिपीटेड क्वेश्चंस है। अच्छा सर. इन केस ऑफ रिइंबर्समेंट और ऑडिट एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग ऑलरेडी बोल दिया है, आयुष सानी ने पूछा था, ऑलरेडी बोल दिया है। जेके पूछा था ना। हाँ, कंचन कपूर जी पूछ रहे हैं, एन इंडिविजुअल क्लाइंट gave a gift in kind for a value more than 20,000 to CA, then TDS applicable? तो सीए का टीडीएस कटेगा क्यों नहीं? सीए को बेनिफिट दिया नहीं दिया आपने, तो वो तो कटेगा ही कटेगा।
चाहे देने वाला बिजनेस कर रहा ना कर रहा हो, सीए तो प्रोफेशन कर रहा है, इन एक्सरसाइज प्रोफेशन है, बिल्कुल कटेगा। Next question, if a company is giving any gift to its dealer relative and relative is not doing any business and profession, TDS 194 are और applicable. डीलर रिलेटिव को कवर कर दिया उन्होंने, डीलर के एम्प्लॉय, डीलर के रिलेटिव सारे कवर कर दिया क्वेश्चन में। डायरेक्टर के रिलेटिव को भी कवर कर दिया, तो करा हुआ है, क्वेश्चन नहीं Next. पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं है उन्होंने सर्कुलर, सिर्फ मेरे से ही पूछना है। Next मेरा टेस्ट लेते हैं कि मुझे सर, भी पता है कि नहीं है, यार टेस्ट मेरा क्यों लेते हो सर। चलो Next question, Rajiv Chopra ji पूछ रहे हैं, if your client invites for dinner but discuss certain points of this business also, where TDS deductible? अरे सर डिनर पे क्या 50,000 से ऊपर खर्च, मेरे पे 20,000 के ऊपर खर्च कर देगा, पहला पॉइंट तो यही है। और सेकेंडली अगर बिजनेस की मीटिंग है तो बिजनेस की मीटिंग आप एस्टेब्लिश कर दो, बिजनेस की मीटिंग है, 90% तो होती ही नहीं बिजनेस की, लेकिन क्लेम तो आप करते ही हो ना, दैट इज अ डिफरेंट इशू। एस्टेब्लिश तो आपको करना है, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। अगर बिजनेस एक्सपेंस है और उसको बेनिफिट और पर्पस नहीं दिया गया, वो तो एक मीटिंग के लिए आया, बिजनेस के लिए आपने उसको बुलाया कि मैं अपने प्रोडक्ट को वो कर रहा हूँ, तो कर लेंगे। Deepak Kejriwal ji का next question, a hotel invites an influencer to stay in a shoot and the entire stay is free. The influencer is expected to post his or her reels on the same. Per the guidelines of the department, if the object is not returned by the recipient, then it is subject to withholding tax. So would tax be withheld on the tax rate of the suite? आपको एक प्रोक्योर्ड काइंड में दिया, उसको ठहराया, यही कहना चाहते हैं ना। जी जी। उसको ठहराया, अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए ठहराया और उसका खर्चा किया तो कोई नहीं मानेगा, तो आएगा ही नहीं। लेकिन उसको बेनिफिट दिया गया तो बेनिफिट पर्पस नहीं है, वो आपका काम आपके होटल में ही कर रहा है, तो उसको ठहरा दिया, तो वो कौन सा बेनिफिट और पर्पस है? पहले अपने आप में हमें ये देखना है, इज इट अ बेनिफिट और पर्पस गिवन टू हिम, इज ही एंजॉयिंग दैट बेनिफिट और पर्पस? बस मतलब अगर बेनिफिट पर्पस नहीं एंजॉय कर रहा तो क्या मतलब? Sir, last, this is the 65th question. Sukhdev Madnani ji पूछ रहे हैं, car loan taken in director's name, but car cost is capitalized in company's books and EMI is also too paid by from the company's bank account. Interest on loan claimed in company's P&L account. Whether TDS under section 194. बेनिफिट क्या डायरेक्टर को कोई बेनिफिट मिला है? No, आप no. डायरेक्टर के नाम पे गाड़ी लेते, डॉक्टर के नाम कोई बेनिफिट नहीं मिला। जजमेंट ये है कि डायरेक्टर के नाम गाड़ी लिया, गाड़ी अगर कंपनी में खर्चा किया है तो डेप्रिसिएशन भी मिलता है उसमें, तो ओनर का कंपनी मानी जाती है। नाम लेना डायरेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई वो तो वही चीज है, वो तो कोई बेनिफिट डायरेक्टर को थोड़ी दे रहे हैं। दैट इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ डायरेक्टर, दैट इज फॉर द कंपनी, बट नेम टेकन इन द नेम ऑफ द पर्सन, वो बात अलग है। हाँ, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है फिर कार दी जाएगी तो फिर वही वाले रूल लगेंगे, कार प्रोविजन, वो जो रूल सेल्फ एम्प्लॉय के लगते हैं। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है और फिर भी कार दी गई है, फिर वही रूल लगेंगे कि बेनिफिट और परक्विजिट है 28(4) में ले लो। ये तो फैक्ट ऑफ द केस बताएगा ना। सिर्फ गाड़ी ली और कंपनी के नाम पे लिए, कंपनी के नाम ली, उसके लेके कंपनी को दे दी, इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आगे सर। सर, if the recipient is not doing business or profession, then is the gift made by the company would be allowed as business expenditure? सर टीडीएस नहीं काटना, 56(2)(10) में तो आ सकता है, अगर 56(2)(10) की आइटम हो तो टीडीएस नहीं काटना। अगर वो 56(2)(10) की आइटम होगी, मनी है तो 50,000 से ऊपर है, अगर वो मूवेबल एसेट है तो जो डेफिनेशन है उसमें है तो है, नहीं तो नहीं है। टीडीएस नहीं काटना अगर ऐसा है, बस। सर कुछ क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, 2-3 और ले लेता हूँ। सर प्रवीण मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं, सर ऑनोरेरियम मोर देन 20,000 रुपीज पेड टू ए पर्सन कवर्ड अंडर दैट प्रोविजन? कौन ऑनरेरियम किसको दिया? कंसल्टेंट है तो वैसे ही टैक्सेबल, इससे क्या कनेक्शन है? वो 194(j) में 30,000 से नीचे है तो छोड़ देते हैं, 30,000 से ऊपर तो 194(j) तो लगता ही है। बाकी सर मुझे लगता है 194(j) में भी तो आता है टीडीएस। जी सर, ये बाकी क्वेश्चन सारे रिपीट हैं, मुझे लगता है वो सारे हमने ले लिए क्वेश्चन आंसर बॉक्स में। तो चलिए थोड़ा सा रह गया, अब आया वर्चुअल डिजिटल एसेट। जी सर। वर्चुअल डिजिटल एसेट पे भी टीडीएस कटना है कि अगर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी कंसिडरेशन टू ए रेजिडेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट is under an obligation to deduct the tax
at the time of credit that payment or at the time of payment, whichever is arrear. The tax has to be deducted at the rate of 1% of the value of that. ये 1% TDS काटना है वर्चुअल डिजिटल एसेट का. किसने काटना है? जो कंसिडरेशन पे करेगा. जो कंसिडरेशन पे करेगा उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट पे TDS काटना है. सेक्शन, क्योंकि ये टैक्स का था, वर्चुअल डिजिटल एसेट का टैक्स कहीं लगाने के लिए नहीं था. तीनों में टैक्स लगेगा, कोई मर्जी. ये आप उसको कैपिटल ये वर्चुअल डिजिटल है, उसकी इनकम है और इनकम पेबल उसके ऊपर आपको TDS काटना है फॉर द ट्रांसफर ऑफ जो कंसिडरेशन दे रहा है. जो कंसिडरेशन दे रहा है मतलब जो परचेज कर रहा है, जो कंसिडर दे रहा है तो TDS काटो. उन्होंने ये कहा वैल्यू ऑफ रेजिडेंट का केस. नॉन रेजिडेंट तो वैसे ही आपको पता है 195 में जाएंगे तो TDS काटिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट. हाँ, 50,000 रुपए से वैल्यू ज्यादा नहीं है अगर वो बेनिफिट ट्रांसफर कौन है, इंडिविजुअल रिचुअल. 50,000 से ज्यादा नहीं है तो उस केस में, और उसका टर्नओवर वो नहीं है तो उस केस में 50,000 है और बाकी केस में 10,000 वो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे TDS काट के जमा कराना है. किसने कराना है? जिसने कंसिडरेशन पे करनी है और अ वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर. अब इन्होंने कहा जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स कितना लगना है, 115 BBH डाला. where the total income includes any income from the transfer of virtual digital asset, that income will be taxable at a special rate of 30%. And सर आप म्यूट हो गए. सर आप म्यूट हो गए. मैंने कुछ करा नहीं, अपने आप हो गया. नो डिडक्शन, नो एक्सपेंस, नो लॉस विल बी अलाउड एक्सेप्ट एक आइटम को अलाउड है और वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट वर्चुअल डिजिटल एसेट. इसके सिवाय कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस, कोई सेट ऑफ लॉस, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा. आपको पूरे के पूरे पे ऊपर 30% टैक्स देना है, 30% टैक्स देना है जिसने रिसिपिएंट है. TDS कितना कटना है वो बात की बात. टैक्स 30%. कौन से हेड में दिखाएंगे? कहता आपकी मर्जी है. बिजनेस में दिखाइए तो भी डिडक्शन कॉस्ट मिलना है. कैपिटल गेन में दिखाइए तो भी डिडक्शन कॉस्ट मिलना है. अदर सोर्स से दिखाइए तो भी डिडक्शन सिर्फ कॉस्ट मिलना है. लेकिन फिर कौन से हेड में दिखाऊं? कहता कोई भी दिखाइए, हमने तो आपको बोला ही नहीं है हेड ऑफ इनकम क्या है. तो मुझसे कोई पूछता क्या करूं, मैं कोई फर्क तो पड़ना नहीं है. सिर्फ एक फर्क पड़ता है, जब कैपिटल गेन में दिखाएंगे तो कैपिटल गेन के केस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में 30% पड़ना. चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो तो 30% पड़ना. तो कहीं से दिखाइए. बिजनेस में भी 30 है, वहां भी सरचार्ज वगैरह अलग है, उसमें भी वही है. लेकिन रुकिए, अगर बाई चांस लॉन्ग टर्म हो जाए और वो 2 करोड़ से ऊपर हो या 5 करोड़ से ऊपर हो तो उस केस में आपको पता है ये 112 में आ जाएगा लॉन्ग टर्म. तो उसके ऊपर सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं होगा. अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस दिखाइए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दिखाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से दिखाइए. हमने तो टैक्स लेना है एट द स्पेशल रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन टैक्स. एक्सेप्ट एक चीज देनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब आया कि भैया इसके ऊपर TDS कटेगा 194S. कौन काटेगा? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. एक चीज इन्होंने बड़ा क्लियर की है. देखिए ट्रांसफर वर्ड लिखा है ट्रांसफर, लेकिन पता क्या लिखते हैं? ट्रांसफर मीन्स मीनिंग ऑफ ट्रांसफर एज डिफाइंड इन सेक्शन 247 कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है. फिर आगे क्या लिख दिया लाइन, वेदर इट इज ए कैपिटल एसेट और नॉट. मीनिंग ट्रांसफर का वहां से चुरा लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि कैपिटल एसेट है तो ये मीनिंग लगेगा. कहता है वेदर इट इज कैपिटल एसेट और नॉट. हम तो ट्रांसफर का मीनिंग वही लेंगे, सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन, जो सेक्शन 2+47 में ट्रांसफर की डेफिनेशन. देखिए आखिर में लाइन क्या लिख दी, वेदर. फिर ये लिखता है कि अगर गिफ्ट में दिया जाए तो क्या होगा? ये वर्चुअल डिजिटल एसेट. वो कहता है भैया 56(2)(10 लगेगा. कहाँ नहीं करा. इन्होंने क्या किया, उस पर डेफिनेशन दी कि भैया वर्चुअल डिजिटल गिफ्ट जो 56(2)(10 में है कि भैया डेफिनेशन है प्रॉपर्टी
7 में लिखे इट विल इंक्लूड वर्चुअल, तो वहां पर भी इशारा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो 50C2N की आइटम हो, आप अदर सोर्सेज में भी दिखा सकते हैं, कैपिटल गेन में भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमने कह दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट पे लगे। और 194S में टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%, और वहां भी वही लिखा है, वेदर इन काइंड और इन पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश, और वेदर एक्सचेंज एक वर्चुअल डिजिटल एसेट को दूसरी वर्चुअल डिजिटल, इसको तो संजय शर्मा जी को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, उनका बेटा भी ये काम करता था। तो आप देख लेना संजय शर्मा जी, ये आप ही के लिए लाया गया है, क्योंकि आपका बेटा बहुत इस वर्चुअल एसेट, आई एम लिसनिंग सर, आई एम लिसनिंग। तो वो वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर वो 10,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटना है, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और टर्नओवर 1 करोड़ से 50 लाख तो टीडीएस 50,000 है, वो आपको कह दिया, और उस पर टीडीएस कटना है, वेदर काइंड हो, चाहे एक्सचेंज हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट हो, चाहे पार्टली इन काइंड हो, पार्टली इन कैश, कोई फर्क। लेकिन एक एडवांटेज है राजेश जी, सेक्शन 203A और 206A भी नहीं लगेगा। 203 होता है 10 नंबर लेना, यहां भी 10 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 लेना होता है ना जब भी टीडीएस करना है, तो 203A इसके लिए एग्जेम्पशन देगी। 206A भी वो है नॉन फाइलर रिटर्न, नॉन फाइलर के केस में डबल द रेट ऑफ टैक्स है, कहता नहीं, ये 206A भी इसमें नहीं लगेगा। ये 2 एक्सेप्शन दे दी है उन्होंने, बाकी तो कह दिया है कि टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, एट द रेट ऑफ 1%, एट द रेट ऑफ 1%। अब इन्होंने वही यहाँ पर भी गाइडलाइंस दी है, सर्कुलर नंबर 12 डाल दिया, सॉरी सर्कुलर नंबर 13 डाला है, और उस 13 नंबर में उन्होंने कर दिया है कि किस किस चीज पे टीडीएस कैसे कटना है। अगर एक्सचेंज के थ्रू लोगे तो पर्सन प्रोवाइडिंग दी कंसिडरेशन कौन है, एक्सचेंज, तो एक्सचेंज टीडीएस काटेगा। एक्सचेंज टू एक्सचेंज को करोगे तो वो सारे क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन, वो ज्यादा आपको ये है कि ये सब चीजों पे टीडीएस कटना ही कटना है। कौन काटेगा वो उन्होंने जरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कई जगह कन्वीनियंस की वजह से एक्सचेंज को बीच में रिस्पॉन्सिबल कर दिया है, वो एक्सचेंज आपके ब्याह पे काम कर रहा है तो एक्सचेंज पे करिए। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, संजय शर्मा जी के और मैं दोनों कर रहे हैं, तो उस केस में मैं प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन, मुझे टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट। और वैल्यू निकालने के लिए वो ही दिक्कत आनी है इसकी, जो उसकी क्या वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यूएशन आपको करनी। तो ये इसके बारे में 194S को मैंने बड़े समरी वे में करा है। लेकिन 194S, एक चीज बता दूं, ये समझना वर्चुअल डिजिटल एसेट लीगल हो गया, ये लीगल नहीं हुआ है। हमारे लॉ में लिखा है संजय जी, फॉर ए पर्सन लाइक मी और यू, व्हाट इज नॉट फॉरबिडन इज अलाउड, और गवर्नमेंट के केस में व्हाट इज नॉट अलाउड इज फॉरबिडन। गवर्नमेंट के केस में व्हाट इज नॉट अलाउड इज फॉरबिडन, लेकिन हमारे लोगों में लिखा है व्हाट इज नॉट फॉरबिडन इज अलाउड, बट इट डज नॉट मीन इट इज लीगल। क्योंकि लीगल हो या इलीगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जुए की गेम हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे क्रॉसवर्ड पजल हो, चाहे स्मगलिंग हो, टैक्स तो लगना ही लगना है। वो कह रहा है मैंने टैक्स लिया है लेकिन इसको लीगल नहीं कहा, नहीं तो लोग इलीगल की इनकम कमा के कहेंगे हमने तो इलीगल इनकम कमाई, वो नहीं। सो टैक्स तो लगना ही लगना है। और टीडीएस की ड्यूटी, वो बहुत सेक्शन पढ़िए, जरा थोड़ा टेक्निकल है कि भैया एक्सचेंज कब काटेगा, जब दोनों तरफ होगा तो कौन काटेगा। आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं, एक्सचेंज अंडरटेकिंग दे सकता है, वो नहीं काटेगा कंसिडरेशन वाला, मैं काटूं, तो वो अंडरटेकिंग दे दे तो एक्सचेंज भी उसके ऊपर टीडीएस काट सकता है। कुछ बेनिफिट इसलिए दिए गए कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक्सचेंज के लिए कह दिया। और ये वाला 194S जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको पता है कि जब कंसिडरेशन दोगे फॉर द ट्रांसफर, उस वक्त आपको टीडीएस की लायबिलिटी है। बात खत्म। ये इसके लिए भी सर्कुलर पढ़ना है आपने बस। थैंक यू। बोलिए रंजन जी, कोई है तो? नहीं, अभी तो और कोई क्वेश्चन है नहीं सर, बाकी तो सारे कवर्ड हैं, आपने सब ले लिए। बहुत आज तो मोर देन 70 के करीब क्वेश्चन हो गए सर। 7 भी बजे। हाँ, टाइम भी पूरा 7 हो गए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी आवाज चलेगी सर, बहुत देर तक नेटवर्क इश्यू है सर आज आपके साथ। हेलो, आवाज चली गई सर आपकी? पहले तो आ रही थी ना? हाँ, पहले आ रही थी नहीं आ रही।
आ रही सर, अब बोलो सर। एक मिनट के अभी सर बीच में ब्रेक हो रही है सर, ब्रेक हो रही है बीच में। एक मिनट सर, आज आनी चाहिए, अब आई नहीं आ रही। बैंडविड्थ का इशू हो रहा है सर भाई कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, मैं देखता हूँ, होल्ड करिए जरा। आ रही है सर आवाज। बीच में ब्रेक हो रही है। वो कई बार हो जाता है सर, अब ब्रेक तो कम करने ही जा रहे हैं, अब क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो पूछिए। नहीं, अब तो कोई इशू है नहीं, कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, जहां तक मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन आप कोई आया। हाँ सर, ये कह रहे हैं संजय सिंगला जी, सर क्लॉज 44 ऑफ फॉर्म 3CD रिलेटेड टू जीएसटी एप्लीकेबल फॉर 22-23। धन्यवाद, इंस्टीट्यूट से पूछिए। मैं 3CD करता नहीं, 40 साल हो गए कोई बैलेंस शीट साइन किए हुए, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। आप करिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से लगेगा, मेरे हिसाब से वो लगेगा, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ही अभी तक डिसाइड करके नहीं बता रहा, तो मुझे अब मैं क्या करूं। इंस्टीट्यूट में भी अभी ये डिस्कशन चल रहा है, और मेरे हिसाब से तो वो 31 मार्च 22 तक था। उसके बाद वो जो भी बैलेंस शीट साइन करोगे, CD करोगे, उस पर 44 लगना चाहिए। लेकिन मेरा कोई व्यू नहीं है, तो मेरे को पढ़ता नहीं हूँ। 3CD मेरे से मत पूछा करो, मैंने कभी कराई नहीं। बात करें। थैंक यू वेरी मच सर। All the best, take care sir, thank you, all the best. Thank you sir, sir. thank you. Right, sir, thank you. Sir, I request Rajiv Kohli ji for a formal vote of thanks, sir. चलिए, Over to Kohli sir. Enlightenment, elaborate things. Basically, it's all the monitoring sections that they want to know, because when the companies, corporates are taking expenses, the commensurate income is being taxable or not. So the entire rigmarole is how to find taxes and generate taxes from income which was not being reported. And the FAQs are very clear, and let's see, things are, lots of litigations take place because so much discretion is there in certain cases. अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन आने के चांसेस हैं सर, आने चाहिए सर। आएंगे, मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। सर क्रिप्टो तो वैसे आजकल बुरा हाल है, ऑल द बिटकॉइन एवरीथिंग जस्ट फॉलन लाइक मैड बेचारे। यू मेड द सेक्शन, अब क्या होगा देखते हैं अब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस। थैंक यू जगजीत जी, थैंक यू। आज आपने थैंक यू जी राजेश जी, थैंक यू कोहली साहब। हाँ जी, थैंक यू सर, राधे राधे सभी को। धन्यवाद। जगजीत जी, आज आपने हैंड रेज किया नहीं, और मैंने तो देखा ही नहीं था आप अटेंडी में हो। अरे सर कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी को पूरा सुना सर। मैंने बाद में देखा कि आप अटेंडी में हो, इसलिए मैंने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं सर, घर वाली बात है यहाँ पे। नहीं, इमीडिएटली आप ज्वाइन करते वक्त हैंड रेज कर दिया करो, जिससे कि मेरे को कम से कम पता लग जाए। आप हमारे इलेक्टेड मेंबर हो सर, अब तो हमें आपसे बहुत गाइडेंस लेनी है। ऑल योर ब्लेसिंग्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू कोहली सर, संजय जी, थैंक यू आयुष भाई, मोदी जी, थैंक यू सर, राधे राधे सर, थैंक यू। कल हमारा है 21 नंबर वाला जैक्स है। हाँ, कल सर हम कर रहे हैं एक वेबिनार, रिसेंट अमेंडमेंट इन जीएसटी। अतुल गुप्ता जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, और शाम को वही 5 बजे का टाइम है। मैं इस पे भी भेज दिया है, बाकी मैं इंडिविजुअली सर्कुलेट और कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।